আমাদের মধ্যে এখন উপস্থিত রয়েছেন শ্রী অনুজ ধর ও চন্দ্রচূড় ঘোষ মহাশয়। জোরে হাততালি হোক ওনাদের জন্য। নমস্কার। মানে আমরা এটা নিয়ে এই বিষয়টা নিয়ে গোটা দেশে ঘুরে বেড়াই, সবার সঙ্গে কথা বলি, নানা দেশে যাই এবং অনেক ভালো র্যাপিড রেসপন্স পেয়েছি, ইন্টেন্স রেসপন্স পাওয়া যায়। তো কথা বলতে কোথাও কোনো অসুবিধা হয়নি কোনোদিন, কিন্তু নিজের শহরে এসে সবারই সামনে অনেক চেনামো, অনেকে আমার ক্লাসমেট, জুনিয়র, অনেক আমার বয়োজ্যেষ্ঠ রয়েছেন শ্রদ্ধেয়, একটু সংকোচ, একটু তো হেজিটেশন তো হচ্ছে। যাই হোক, আপনারা মোটামুটি আশা করি সবাই গুমনামি সিনেমাটা দেখেছেন। বেশ ভালো। তো মানে এতদিন ধরে যেটা হয়ে এসেছে, 1945 সালে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধানের পর্বে প্রায় 75 বছর আমরা শুনে এসেছি নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য। মানে তার কি হলো, তিনি কোথায় গেলেন, কেউ নিশ্চিতভাবে সঠিকভাবে বলতে পারেন না। তদন্ত কমিশন বসেছে 3টে, অনেক জার্নালিস্ট নিজে থেকে তদন্ত করেছেন, অনেক তর্ক বিতর্ক, নানা সভায়, কখনো লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে, কখনো পার্লামেন্টে, নানা জায়গায় বিতর্ক চলেই এসেছে, কিন্তু সঠিকভাবে কেউ বলতে পারেনি যে ওনার ঠিক কি হয়েছিল, উনি কোথায় গেছিলেন। অবশ্যই ভারত সরকারের একটা নির্দিষ্ট মানে মতামত আছে এটা নিয়ে। তো সরকারিভাবে নেতাজির মৃত্যু 1945-এর 18ই আগস্ট হয়ে যায়, কিন্তু পরপর যেভাবে তদন্ত কমিশন বসাতে বাধ্য হয়েছে, নানা ধরনের কোর্টের রায় এসেছে এক এক সময়, তাতে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে সরকারিভাবে এটাকে বলে রাখা হলেও দেশের সাধারণ লোকজন এটাকে কখনো মেনে নেয়। তো তো প্রশ্ন হচ্ছে যে নেতাজির কি হলো। সরকারি একটা অবস্থা নিশ্চয়ই রয়েছে, সরকারের একটা মতামত রয়েছে একটা, কিন্তু সেটা দেশের লোক কখনো মেনে নেয় এবং নানা ধরনের থিওরি, নানা ধরনের হাইপোথেসিস এক এক সময় এসে সামনে চলে এসেছে। কেউ বলেছেন নেতাজি মারা গেছেন প্লেন ক্র্যাশে, বিমান দুর্ঘটনায়। কেউ বললেন ওখান থেকে উনি রাশিয়া চলে গেছেন মাঞ্চুরিয়া হয়ে। কেউ বললেন আরো একটু এগিয়ে গিয়ে যে সেখানেই তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। আবার কেউ বললেন না তিনি চায়নায় গিয়ে থেকে গেলেন। আবার বললেন কেউ যে না দেশে ফিরে এসছেন। কেউ বললেন না ওনাকে তো ধরে আনা হয়েছিল লালকেল্লায়, ওখানে গুলি করে মেরে দেওয়া হয়েছে। তো এরকম নানা ধরনের হাইপোথেসিস, নানা ধরনের থিওরি এক এক সময় সামনে এসেছে। তো মানে সবাই কনফিউজ হয়েছে যে এর মধ্যে সত্যিটা কোথায়, এত লোকে এত কথা বলছে, এর মধ্যে সত্যিটা কোথায়। তো সমস্যাটা হয়েছিল যে এত যে তথ্য, এত মানে এত এত থিওরি, তার পেছনে যে তথ্য, যে ফ্যাক্টের উপরে বেস করে এই থিওরিগুলোকে দাঁড় করানো হয়েছিল, সেই ফ্যাক্টগুলো, সেই ডকুমেন্টসগুলো কখনো লোকের সামনে আসেনি। সেগুলোকে প্রায় 7 বছর ধরে গোপন রাখা হয়েছিল। ফলে যে যা বলতো লোকে সেটাই মানে সিরিয়াসলি সেটাকে কনসিডার করতেন, সেটাকে নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতেন, সেটাকে নিয়ে তর্ক বিতর্ক করতেন। কিন্তু যখন এই ডকুমেন্টগুলো বেরোতে শুরু করলো, সেগুলোকে যখন আমরা অ্যানালাইজ করতে শুরু করলাম, তখন দেখলাম যে যেগুলো অ্যাবসার্ড, যার কোনো এভিডেন্স নেই, কোনো ভিত্তি নেই, সেগুলোকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে মেইনলি আমরা 3টে প্রবাবল সিনারিও পাই, 3টে পসিবিলিটি। এক, যে তার বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল। 2, তিনি রাশিয়ায় চলে গেছিলেন এবং তাকে হয়তো সেখানেই মেরে ফেলা হয়েছিল। এবং 3, এই দুটোর কোনোটাই সত্যি নয়। যেটা সত্যি সেটা হলো উনি দেশে ফিরে এসেছিলেন এবং এখানেই ছিলেন মৃত্যু। যা কিছু এভিডেন্স আছে, সেই এভিডেন্সগুলোর ভিত্তিতে খালি এই 3টেই একটা লজিক্যাল গল্প তৈরি করা যায়। আর কোনো গল্প, কোনো লজিক্যাল কোনো ভিত্তি নেই, কোনো রেশনাল নেই, সেগুলো মানে মেনেই নেওয়া যায়, এত আছে। তো এই 3টে আপনারা গুণাবি দেখেছেন অবশ্যই।
তো এই তিনটে যে থিওরি বেশ সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন সৃজিত। अभी थोड़ा वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको ठीक करते हैं। इसमें मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ क्योंकि आई एम सॉरी, मैं बंगला नहीं बोलता, मैं इंग्लिश और हिंदी बोलूँगा, दिल्ली वाला हूँ। हम लोग जब दिल्ली में अब बड़े हुए, अलग अलग किस्म की कहानियाँ नेताजी के मरने के बारे में लोगों ने बीच बीच में दी उठा करके, और लेकिन पिछले 15-20 साल में बहुत बड़ा चेंज आया है, खासकर ये उन लोगों के लिए जो हमसे उम्र में बड़े। और ये चेंज ये आया है कि पिछले 10-12 साल, खासकर 97 के बाद से इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है जो पहले अवेलेबल नहीं थी। जैसे कि कुछ लोग जो सन 70 के दशक में या 60 के दशक में बड़े हुए थे या 80 के दशक में बड़े हुए थे, कई चीज़ें जो उस जमाने में कंस्पिरेसी थ्योरी के की तरह से मशहूर थी, आज या पिछले 10-12 साल में उनको सपोर्ट करने के लिए एविडेंस अवेलेबल है। और एविडेंस इतना ज़्यादा है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बार बार कहता आया हूँ कि अगर पंडित नेहरू आज जिंदा होते तो आज बड़ी मुश्किल में पड़ जाते, क्योंकि वो जिंदा नहीं है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो एविडेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग स्वर्ग से धार चुके हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए वो कुछ लोगों के दिमाग में ये हल्का सा चीज़ है कि साहब ये तो पहले भी बात बोली गई। तो पहले में और अब में फ़र्क ये है कि बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है, और इतनी अवेलेबल हो गई है कि जो अगर कोई सवाल पूछता है कि नेताजी को क्या हुआ, आपको ये 3 ऑप्शन आपके सामने की प्लेन क्रैश, रशियन एंगल और तीसरा आपका फैजाबाद। तो चौथा किसी ऑप्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारा मानना है कि गुंजाइश है नहीं पूरी बात है, लेकिन अगर कोई बहस करना चाहते तो 3 ऑप्शन आपके सामने की प्लेन क्रैश, रशिया एंगल और आपका तीसरा फैजाबाद वाला शो। तो ये क्लैरिटी जो है सन 97 के बाद से ज़्यादा हुई है, क्योंकि 97 में बड़ी अच्छी घटना घटी कि नेताजी के 100 साल पूरे हो गए थे जन्म के, और भारत के 50 साल हो गए थे। तो इसलिए बहुत से डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले रिलीज़ किए, डीक्लासिफाई किए, और वो ये देखा देखी इंग्लैंड में, अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में, इन जगहों में बहुत डॉक्यूमेंट निकले, और कई बातें जो पहले अवेलेबल नहीं थी वो बाद में अवेलेबल शो होगी। तो इसलिए कि अब जो क्लैरिटी है बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ लोगों के दिमाग में ये बात चीज़ है कि साहब ये बातें तो पहले भी लोग करते थे, कि वो नारायण सान्याल ने भी किताब, कुछ लोग मुझे बार बार जिक्र करते हैं कि साहब ये तो नेताजी प्लेन क्रैश में नहीं मरे, ये तो नारायण सान्याल ने भी लिखा था। लेकिन नारायण सान्याल जी ने जो लिखा था, मुझे पता नहीं 80 का दशक का 70 का दशक का, उसमें और आज के ज़माने में इतना ही फ़र्क है जितना आज के ज़माने के टेलीफोन में उस ज़माने के टेलीफोन में था। तो फ़ोन तो पहले भी थे, वो काले वाले मिलते थे, आप घुमाओगे तो आवाज़ आएगी। अब तो आपके पास में आईफोन और सेलफोन आ गए हैं, दोनों के दोनों फ़ोन, लेकिन इसलिए बहुत एडवांसमेंट इस केस में हो चुकी है। গত 15 বছর ধরে যা রিসার্চ আমরা করতে পেরেছি, যা ডকুমেন্টস আমরা বের করতে পেরেছি, এর আগে তো পুরোটাই অন্ধকার ছিল। মানে আমরা ছোটবেলা থেকে কি বই পড়েছি, ছোটবেলা থেকে বই পড়েছি সুভাষ গড়েফেরানায়, বরুণ সেনগুপ্ত, নেতাজি অন্তর্ধান রহস্য, এগুলোই আমাদের কাছে ছিল মূল বই। তো যতটুকু আমরা জানতাম, যতটুকু বুঝেছি, নারায়ণ সান্যালের কোথায় বুঝেছে, তো এই ধরনের কিছু বই আমরা পড়ে আমরা জানতে চেষ্টা করতাম, বুঝতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু মানে ডিপে গিয়ে এগুলোকে অ্যানালাইজ করা, আরো তলিয়ে বোঝার চেষ্টা করা, সেটা করার আমাদের সামর্থ্য ছিল না, সাধ্য ছিল না। তার কারণ সুভাষচন্দ্র বসু সংক্রান্ত যা কিছু ফাইল, যা কিছু ডকুমেন্ট, সেটা স্বাধীনতার 50 বছর পর সেটাকে গোপন রাখা হয়েছিল। প্রথমবার ফাইলস বের করা হলো স্বাধীনতার 50 বছর পর। এই প্রসঙ্গে পরে আসবো, কিন্তু এই যে ফাইলস রিলিজ করা শুরু হলো, এই যে আমরা দেখতে পারলাম, নিজেরা আমরা পড়াশোনা করতে শুরু করলাম,
নানা লোকের সঙ্গে কথা বলে অনুসন্ধান করে যেগুলো করতে পারলাম, তার ভিত্তিতে এটা আজকে শুনতে একটু আশ্চর্য লাগলো, অবাক লাগলো, এবং অনেকেরই হয়তো মনে হবে যে আমরা একটু অ্যারোগেন্ট এটা নিয়ে বলছি, এইভাবে বলছি, ওভার কনফিডেন্ট মনে হবে। কিন্তু এটুকু বলতে পারি যে আজকে এই রহস্যটা আর রহস্য নয়, যে নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য যেটা ছিল তার সমাধান, তার উত্তর হয়তো আমরা আজকে পেয়েছি, আজকে আমরা জানি, এটুকু বলতে পারি। অনেক জিনিস এখনো অজানা রয়েছে, সেগুলো আস্তে আস্তে জানতে হবে, সেগুলো জানারও উপায় রয়েছে, কিন্তু মূল উত্তরটা আজকে আমরা জানি, এটুকু আমরা বলতে পারি। তো যা জানতে পেরেছি সেটা আমরা ওই কনন্ড্রাম, আমরা যে বইটা লিখেছি অনুজ এবং আমি, গত বছর পাবলিশ করা হয়েছিল, আর কলকাতায় সৃজিত এবং প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় রিলিজ করেছিলেন। এই বইতে আমরা সব এর ভেতরেই দিয়েছি। যারা পড়েছেন তারা হয়তো জানেন, যারা পড়েননি এখনো তাদের অনুরোধ করব পড়ে দেখুন, ভালো লাগবে। একটু কষ্ট হবে, একটু যেমনি আমাদের ব্যঙ্গ করে বলা হয় টিভি চ্যানেলে যারা আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলেন, তারা বলে যে থার্নিটের মতো বই লিখেছে। একটু থার্নিটের মতো বইটা কিন্তু পড়তে ভালো লাগবে। তো মূল জিনিস হলো যে আমরা যে উত্তরটা খুঁজে পেয়েছি তাতে এটুকুই দেখতে পাচ্ছি যে বিমান দুর্ঘটনা এবং রাশিয়ায় চলে যাওয়া, এই দুটো থিওরিকেই আমরা আজকে নাকচ করার মতো অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি। এই দুটোর মধ্যেই প্রচুর কন্ট্রাডিকশন রয়েছে, প্রচুর ইনকনসিস্টেন্সি রয়েছে, এবং এর মধ্যে কোনো সেরকম বলার মতো কোনো প্রমাণ নেই। কেন নেই সেটা দেখাবো। আপনারা এখন বেশ অনেকটা সময় আছেন এখানে, আস্তে আস্তে আমরা সবই বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলবো। কিন্তু এই তৃতীয় যে পসিবিলিটি, তৃতীয় যে হাইপোথিসিস আজকে আমরা এখানে এসেছি, এটা ছাড়া আর কোনো উত্তর আমরা পাচ্ছি না। যা প্রমাণ, যা এভিডেন্স, যা ফাইল, যা ডকুমেন্ট, যত লোকের সঙ্গে কথা বলেছি, এভরিথিং, অল রোডস আর লিডিং দেয়ার। দের ইজ নো আদার ওয়ে, দের ইজ নো আদার পসিবিলিটি। এবং অনেকে পছন্দ হয়নি, এবং আপনারা দেখেছেন গুমনামি রিলিজ হওয়ার আগে অনেক চেঁচামেচি হইহুল্লোড় রয়েছে, অনেকে নাচানাচি করেছেন, প্রেস কনফারেন্স করেছেন, আমাদের ধমকি দিয়েছেন, শ্রীজিৎ মুখার্জিকে ধমকি দিয়েছেন যে দেশ ছাড়া করে দেবো, আমাদের বলেছে যে তোমাদের পেছনে আমরা ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো লাগিয়ে দেবো, তদন্ত করাবো, মানে তোমরা দেশদ্রোহী, ট্রেটার্স টু দ্য নেশন, হ্যান ত্যান অনেক কিছু বলা হয়েছে। পছন্দ হয় না, তার মানে বুঝতে পেরেছি কারণ অনেক আছে। তার মধ্যে সাধারণ লোকে যখন এটা মেনে নিতে পারেন না, তার একটা কারণ হলো যে এই নামটা গুমনামি বাবা, মানে যেটা আমরা বলে থাকি যে বেঙ্গলিজ আর বিট কালচারালি রিফাইন্ড অ্যান্ড সেন্সিটিভ পিপল। গুমনামি বাবাটা খুব উত্তর ভারতের একটা প্রচলিত নাম হতে পারে, ওই ধরনের হতে পারে, ওখানে সেন্সিবিলিটির সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়, আমাদের সঙ্গে হয় না সেটা। তো নেতাজির ইমেজ একদিকে, নেতাজি এমন একজন ব্যক্তিত্ব, এমন একটা চরিত্র, এমন একটা পার্সোনালিটি যার প্রতি আমাদের অগাধ মানে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, যাই বলুন, আমরা ইমোশনাল, প্রতিটি বাঙালি প্রায় ইমোশনাল। মানে সবাই ভালোবাসে তা না, অনেকে মেনেও নিতে পারেন না তিনি যা করেছিলেন, কিন্তু সেখানেও ইমোশনাল। সো এই ইমোশনাল এগেনস্টে গিয়ে ওই নামটা দাঁড়িয়ে পড়ে। যেহেতু আমরা ইমোশনাল, আমরা তার চরিত্র নিয়ে একটা মানসিক একটা পিকচার একটা গঠন করি, আমাদের একটা মেন্টাল পিকচার আছে নেতাজি কেমন ছিলেন। বীর পুরুষ, সবারই এগেনস্টে গেছেন, নিজে দাঁড়িয়েছেন, রেবেল প্রেসিডেন্ট, নিজে লড়াই করেছেন, নিজের রাস্তায় হেঁটেছেন, ইংরেজদের তাড়িয়েছেন। তিনি ফিরে এসে গুমনামি বাবা হয়ে যাবেন, এটা মেনে নেওয়াটা খুব শক্ত। এবার আমরা গুমনামি বাবার নামটাকে সরিয়ে দিই, লেটস গেট ডান অ্যাওয়ে উইথ ইট। উনি গুমনামি বাবা নন, উনি কখনো নিজের জীবনে এসে দাঁড়িয়ে বলেননি হাই আই এম গুমনামি বাবা। ওনার নাম কি ছিল? নাম কিছু ছিল না, কেউ ওনার নাম জানতো। তো বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন নাম দিয়ে ডাকতেন, কেউ পর্দাওয়ালা বাবা, কেউ আরাম সাদ, কেউ শ্রী গুরুদেব, কেউ সদ্গুরুদেব, কেউ গুরুজি, নানা রকম। সো একটা নামকরণ যখন করার দরকার হয়ে পড়লো ওনার মৃত্যুর পরে, তখন উত্তরপ্রদেশের লোকাল প্রেস ওনাকে নাম দিল গুমনামি। এবং যেহেতু উনি একটু স্পিরিচুয়াল নেচারে ছিলেন, সেই বাবাটা ওর সঙ্গে জড়ো হয়ে গেল, ওর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলো, তো গুমনামি বাবা হয়ে গেল। তো আমরা গুমনামি বাবা বলবো না, আমরা বলি অনমসান, আমরা বলি সে ভগবানজি,
ওনার শিষ্যরা ওনাকে ভগবানজি বলে ডাকবেন, লেটস কল হিম ভগবানজি, লেটস গিভ হিম এনি আদার নেম, এক্স ওয়াই জেড হোয়াটএভার, কিন্তু গুমরামি বাবা বলবো না। তাহলে দেখা যাক মেনে নেওয়া যায় কিনা। তো নামটা ছেড়ে তাহলে আমরা তথ্য প্রমাণের দিকে বেশি ফোকাস করতে পারি। আর অনেকেই আপত্তি করেছেন, যারা আপত্তি করেছেন তাদের উদ্দেশ্যেও যে আমরা যেটা বলতে চাই, খুব সুন্দরভাবে সেটা সৃজিত ওই গুমরামি ছবিতে দেখিয়েছে। এটাই মূল বক্তব্য আমাদের। আমি আমার থিওরি বলবো, তার সপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণও খাড়া করবো, আপনার যুক্তিতে কিছু মনে না হলে আপনি মানবেন না। আমরা যুক্তিকে আপনার মানা যদি মনে না হয়, যদি মানতে পারছেন না, মানবেন, ঠিক আছে, কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন, ওপিনিয়ন ইজ নট দ্য সেম অ্যাজ এভিডেন্স। আপনার কি মনে হলো, কি মনে হলো না, কোনটা ভালো লাগলো, কোনটা ভালো লাগলো না, তাতে কারোর কিছু যায় আসে না। একটা থিওরি যদি আপনি প্রমাণ করতে চান, তার প্রমাণটা সামনে নিয়ে আসুন, এভিডেন্সটা চাই। একটা এভিডেন্স হ্যাজ টু বি লিগালি টেনেবল, ইট হ্যাজ টু বি রিজনেবল, ইট হ্যাজ টু হ্যাভ আ রেশনাল ফ্রেমওয়ার্ক। আমার মনে হতে পারে নেতাজি তিব্বতে বসে কোনো মঠের ভিতরে সাধনা করছেন, আমার মনে হলে তো সেটা সত্যি হয়ে যাবে না, তার জন্য আমাকে তার প্রমাণটা নিয়ে আসতে হবে। সেই প্রমাণটা যতক্ষণ আমি নিয়ে আসতে পারছি, আমার কি মনে হলো, আপনার কি মনে হলো, তাতে কারোর কিছু যায় আসে না। তো যাই হোক, ইন শর্ট, এটা মানে বেসিক ইন্ট্রোডাকশনটা। এরপরে যে তিনটে সিনারিওর কথা বললাম, যে প্লেন ক্র্যাশে ওনার মৃত্যু, রাশিয়ায় মৃত্যু এবং ভারতে ফিরে আসা, এই তিনটে আমরা সিনারিও আলাদা করে দেখব। তো প্লেন ক্র্যাশ আর রাশিয়ার মৃত্যু, এই দুটো অনুজ আপনাদেরকে বোঝাবো। एक्चुअली मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि सब लोगों ने हमको ये बोला कि हमारे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि अगर छोटा सा लेक्चर देते हैं, मान लीजिए आधे घंटे का लेक्चर दिया, तो लोग क्वेश्चन करता है यार आप लोगों ने तो एक सिलेक्टिव आंसर दे दिया, आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। और जब हम उस सारे क्वेश्चन के आंसर हम देते हैं तो लेक्चर हो जाएगा 3 घंटे का। फिर बोलते हैं आप तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। तो यार भैया, आपको अगर डिटेल चाहिए तो टाइम दोगे, और आपको छोटा टाइम दोगे तो आपको फिर हम लोग कम बातें बताएंगे। तो ये प्रॉब्लम हमको आती है। अभी हमको लोगों ने बोला कि क्योंकि फिल्म आ गई है और पहले लोग गुमनामी बाबा जो है उसको सुनने को राजी नहीं थे, अब ज़्यादा लोगों का मानना ये है कि उस थ्योरी में बहुत जान है। तो हमको लोगों ने बोला कि आप उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए, और तो इसलिए ज़्यादा प्लेन क्रैश पे हम नहीं बोलेंगे। उस पर 14 पॉइंट 2-3 बातें आपको बता दूंगा, ताकि हम लोग जो मेन चीज़ है, और खासकर ये क्योंकि इशू तो पूरे भारत के लिए लेकिन बंगाल सेंट्रिक है, क्योंकि गुमनामी बाबा से जो ज़्यादा सबूत निकल के आ रहे हैं बंगाल से जुड़े हुए। तो मैं चाहता हूँ कि और खासकर चंद्रचूड़ आप भी लोग आए यहाँ पे, तो ये उस पॉइंट को ज़्यादा आपको समझाए, और शायद आपसे अच्छा कोई समझ नहीं पाएगा। प्लेन क्रैश की थ्योरी क्या, प्लेन क्रैश की, देखिए प्लेन क्रैश की थ्योरी के पीछे कोई एविडेंस नाम की चीज़ ज़्यादा नहीं है। उसके लिए हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स हैं। इनफैक्ट ये पूरी जो प्लेन क्रैश की जो थ्योरी थी, जो कहा जाता है कि नेताजी का प्लेन क्रैश हुआ, उसमें उनकी डेथ हो गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में, ये उस तरह का नहीं है जैसे संजय गांधी की डेथ हुई थी प्लेन क्रैश में, या माधवराव सिंधिया की डेथ हुई थी। माधवराव सिंधिया का प्लेन क्रैश होना, संजय गांधी का प्लेन क्रैश होना ओपन एंड शॉर्ट केस है, कि जहाज छोड़ा, संजय गांधी जहाज में बैठा, जहाज क्रैश हुआ, बॉडी रिकवर हो गई, पोस्टमार्टम हुआ और सारी कहानी खत्म हो गई। सुभाष पोस्ट वाले में ये चीज़ नहीं थी, बड़ा अजीबोगरीब सा केस था। उसमें कोई एविडेंस नाम की चीज़ डायरेक्टली नहीं मिल रही थी, सिर्फ आई विटनेस अकाउंट के बेस पे था। एक डेड बॉडी की फोटोग्राफ उन्होंने रिलीज की, जिसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। ये नेताजी की डेड बॉडी की फोटोग्राफ है जो जापानी ने निकाली थी। अब इससे क्या साबित होता है मुझे बताइए आप। कपड़े के नीचे मुझे क्या पता भैया क्या चीज़ है। तो कोई पोस्टमार्टम नहीं, कोई डॉक्टरी रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आई विटनेस अकाउंट के बेस पे ये कहानी निकली थी। और उसके बाद में हिंदुस्तानियों को तो ये बात समझ में नहीं आई। हम लोग तो बड़े सिंपल किस्म के लोग थे, लेकिन इस चीज़ को आपके जो अमरीकी थे, अमरीकी और अंग्रेजों को डाउट हुआ कि साहब इसमें कुछ गड़बड़ है। भारत वालों के पास में हम बड़े सिंपल किस्म के लोग थे, उस जमाने में चरखे खाते थे बैठ करके। तो लोगों के दिमाग से बाहर था ये बात कि कोई आदमी अपनी मौत का नकली नाटक करके कहीं भाग सकता है, आप नकली स्टोरी को प्लांट कर सकते हैं। इस तरह के जो ख्याल हैं वो हमारे को दिमाग से बाहर थे लोगों के। तो बाद में जब इनको शक हुआ, अंग्रेजों को और अमेरिकन को, उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करके बोला कि साहब इसमें गड़बड़ है। तो उनकी डेथ पे इंक्वायरियाँ हुई थी। जैसे ये आपका अमेरिकन गवर्नमेंट का असेसमेंट है, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको, और ये अमेरिकन गवर्नमेंट का असेसमेंट है कि जब ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने अपनी इंक्वायरी करी सन 45 के बाद, डेथ होने के बाद में,
उन्होंने अमेरिकियों से पूछा कि साहब आपका क्या मानना है इस केस में, और अमेरिकन ने ही इंक्वायरी सुभाष बोस की डेथ पे शुरू की थी। तो ये डॉक्यूमेंट है आपका 20 जून 1946 का। आपको एक एक चीज़ जो हम लोग स्क्रीन पे दिखाएंगे वो या तो सरकारी डॉक्यूमेंट होगा, या कोई कोर्ट के ऑर्डर से निकला हुआ इन्फॉर्मेशन है, या किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी, मतलब बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा दिखाएंगे। यहाँ आपको बैठ कर कोई टैबलेट नहीं दिखाने वाले। पहले आपको बोला गया था बिलीफ, हम आपको अपना बिलीफ बताने के लिए नहीं आए यहाँ पे कि मेरा बिलीफ क्या है, आपको डेटा दिखा रहे हैं, रॉ डेटा की इन्फॉर्मेशन क्या होती है। ये अमेरिकन गवर्नमेंट का जो मिलिट्री डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिसको आजकल कहते हैं रक्षा मंत्रालय, उस जमाने में उसका नाम था वॉर डिपार्टमेंट, उसका डॉक्यूमेंट है ये 20 जून सन 46 का। नेताजी को मरे हुए 8-9 महीने हो चुके हैं। आप खुद सोचिए इस तरह का डॉक्यूमेंट अगर संजय गांधी के मरने के बारे में होगा तो देश में क्या होगा। ये इनको पूछा उन्होंने कि साहब ये आदमी आपके वहाँ ताइवान में प्लेन क्रैश हुआ था, आप लोगों ने इंक्वायरी शुरू की थी, आपका स्टैंड क्या है। ये अमेरिकन ने आंसर दिया है, A search of the files in the intelligence division reveals that there is no direct evidence that Subhash Chandra Bose was killed in this plane crash, despite the public statement of the Japanese to that effect. जापानी कह रहे हैं कि वो मर गया, लेकिन डायरेक्ट एविडेंस कुछ नहीं। तो ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना, क्योंकि यहाँ पे आपके बंगाल में 3-4 वो कांग्रेसी टाइप लोग हैं, वो एक सुगौतो बोस है, वो अमेरिका में पढ़ाता है, वो आके बोलता रहता है कि साहब प्लेन क्रैश हो गया, ऐसे कि जैसे कि आपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था प्लेन क्रैश होते हुए। भैया डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, ये अमेरिकी बोल रहे हैं, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय बोल रहा है, आप हो कौन? तेरे जैसे 50 प्रोफेसर घूमते हैं अमेरिका के अंदर बैठा हुए। उसके बाद में जो आखिरी रिपोर्ट जो अवेलेबल है, इन्होंने टीम फॉर्म की थी यहाँ पे, उसका नाम था कंबाइंड सेक्शन। कंबाइंड सेक्शन का हेड था डब्ल्यू मैकराइट, जो आईबी का नंबर 2 था। उसमें एक था फिनी बंगाल पुलिस का चीफ था, राय बहादुर बख्शी बद्रीनाथ, वो उसमें इन्वॉल्व थे। तो एक टीम बनी थी ये इंक्वायरी करने के लिए कि सुभाष बोस की मौत की खबर ठीक है कि गलत है। उसका नाम था कंबाइंड सेक्शन। कंबाइंड सेक्शन की ये एक रिपोर्ट जो अवेलेबल है, आखिरी ये वाली रिपोर्ट से आपको दिखा रहे हैं। तो इस रिपोर्ट से सारी कहानी क्लियर हो जाती है कि हुआ क्या था। जैसे यहाँ पे ये उन्होंने लिखा हुआ है, इट सीम्स क्लियर दैट बोस एंड स्टाफ वर ट्राइंग टू मेक ए गेटवे टू रशिया, कि नेताजी और उसके साथी रूस जाने की तैयारी कर रहे थे। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आज से 10-12 साल पहले आपको मैं बता था कि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये कागज अगर पंडित जी के ज़माने में निकल आता तो पंडित जी की हालत खराब हो जाती, क्योंकि आप लोग झूठ बोल रहे थे कि साहब रूस में जाने का तो प्रूफ नहीं है। अरे ये क्या बढ़िया रिपोर्ट्स हैं इंटेलिजेंस की। तो इनको रूस में जाने की बात बिल्कुल पहले दिन से मार्केट में थी, लेकिन उन्होंने छुपाई है सरकार ने, अभी भी छुपा रहे हैं लोग बैठ करके। ये नीचे लिखा हुआ है कि हबीबुर रहमान, प्रीतम सिंह एंड गुलजारा सिंह एंड हासन, जो लोग सुभाष के साथ में आखिरी तक जुड़े हुए थे, जैसे प्रीतम सिंह जी की डेथ हुई है आपकी 2010 में, तो ये सारे लोग के बारे में लिखा है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग सच नहीं बता रहे हैं उनके बारे में। आगे करके इन्होंने ये बताया रिपोर्ट में कि उनको खबरें मिल रही हैं रूस से, और रूस के जो डिप्लोमेट हैं वो कह रहे हैं कि सुभाष बोस जिंदा है। जैसे ये लिखा हुआ है कि इन्फॉर्म बाय रशियन एम्बेसडर इन काबुल दैट देयर वर मेनी कांग्रेस रिफ्यूजीज इन मॉस्को एंड बोस वाज इंक्लूडेड इन देयर नंबर। फिर लिखते हैं कि ये इन्फॉर्म किया कि मोराडोव, द रशियन वाइस कॉन्सुल जनरल इन तेहरान, ईरान जो आजकल का ईरान, डिस्क्लोज इन मार्च दैट बोस वाज इन रशिया। ये 8/4/46 की खबर है, मतलब मरने के महीनों बाद तक खबरें मिल रही है कि साहब वो रूस में हो सकते हैं, और रशियन खुद इस बात को बोल रहे हैं। तो प्लेन क्रैश की थ्योरी को ब्रिटिश इंटेलिजेंस, अमेरिकन वगैरह किसी ने एडमिट नहीं किया उस जमाने में। इनफैक्ट बात करते आई हमारे टाइम पे भारत सरकार का जो स्टैंड है नेताजी की डेथ पे, ये प्रधानमंत्री नेहरू जी के लेटर पे ये लिखा हुआ है। पंडित जी खुद बहुत बड़े वकील थे, सुभाष बोस के दोस्त थे इस समय पे। तब उनसे पूछा गया कि तुम्हारे पास में नेताजी का मरने का कोई क्लियर कट प्रूफ है, तो यहाँ लिखा हुआ है, आई कैन नॉट सेंड यू एनी प्रूफ ऑफ द डेथ ऑफ सुभाष बोस। कोई प्रिसाइज और डायरेक्ट प्रूफ नहीं है। तो ये पॉइंट आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि सुभाष बोस की जो डेथ की बात बोली जाती है वो वैसी नहीं है जैसे माधवराव सिंधिया की डेथ की बात हो या आपने संजय गांधी की डेथ की बात हो। इसमें प्रॉब्लम है, इसमें कभी प्रूफ नहीं था ढंग से, और ये सारा बात एडमिट किया। और ये जो केस खुलने का रीज़न है हमारे ज़माने में कि आपकी कैलकाटा हाई कोर्ट में किसी ने PIL फाइल की थी 97 में। कैलकाटा हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद कैलकाटा हाई कोर्ट के सामने इस बात को माना है सन 97 के अंदर कि इस पूरी प्लेन क्रैश की थ्योरी में क्वेश्चन मार्क है। एक बड़ी अजीब सी बात है इस देश में, जब हमारे देश में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, चाहे वो मोरारजी भाई की गवर्नमेंट हो, चाहे वो देवी गौड़ा की गवर्नमेंट हो, चाहे VP सिंह की गवर्नमेंट हो, चाहे मोदी की गवर्नमेंट हो, जब इस देश में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी
तब तक हमेशा उसमें कुछ ना कुछ सिचुएशन में चेंज आया है। तो 97 में गवर्नमेंट ने खुद एडमिट किया ऑन रिकॉर्ड कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने कि प्लेन कैश की थ्योरी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो कोर्ट में फिर उस जमाने के चीफ जस्टिस थे प्रभाशंकर मिश्रा जी, उन्होंने कहा भैया इंक्वायरी करवाओ। फिर आपका जस्टिस मुखर्जी कमीशन बना, जैसे आप लोगों को पता है कमीशन ने यही बात बोली कि साहब प्लेन कैश में उनकी डेथ नहीं हुई है, ये पूरी कहानी प्लांट की गई थी। और उसी कमीशन की इंक्वायरी के दौरान पता चलता है कि साहब जहाँ प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ की गवर्नमेंट ने मना कर दी कि प्लेन क्रैश कोई नहीं हुआ, तो आपकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। मुखर्जी कमीशन ने ये बोला कि आजकल ये बड़ी बड़ी बातें, देखो बड़े बड़े लोग पैदा हो गए सुभाष बोस की फैमिली के आजकल, कि साहब वो नेताजी की अस्थि वहाँ पड़ी है जापान के अंदर। पूरा रिकॉर्ड क्लियर है कि अस्थि सुभाष बोस की नहीं है, एक जापानी सोल्जर था, उसका नाम था इचुरो ओकोरा, उसकी बॉडी को नेताजी की बॉडी बना के जलाया गया था। तो आपको अगर कहानी क्रिएट करनी है तो आप ऐसे क्रिएट करेंगे। यार मोबाइल फोन ऑफ कर दो, आपकी सबकी मुझे रिंगटोन सुनाई देगी कान में, मोबाइल फोन ऑफ कीजिए। तो ये एशेज जो है जो कहा जाता है जापान में पड़ी है, तो वो नेताजी की नहीं है, मुखर्जी आयोग ने प्रूफ दे दिया है। एक आपका एक जापानी सोल्जर था, उसकी अस्थियां, तो जस्टिस मुखर्जी ने वो हड्डियां खोल करके उसकी फोटो वोटो निकाली। और कुछ लोग आजकल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवाते, डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवाते। अरे भैया डीएनए टेस्ट के हम बिल्कुल फेवर में, हम भी फेवर में, आज कहाँ खड़े होकर बोल रहा हूँ कि हम दोनों चाहते हैं कि डीएनए टेस्ट हो, क्योंकि हमें कोई डर नहीं है, अस्थियां उनकी नहीं है यही साबित होगा। लेकिन सरकार नहीं चाहती है, और हमारा बस यही मानना है कि अगर आप डीएनए टेस्ट करवाएंगे कभी भी तो आप करवाएं किसी फॉरेन की लैब के अंदर, देसी लैब में टेस्ट नहीं होगा। ये देसी लैब का हमको भरोसा नहीं है इस केस में, ये इशू बड़ा पॉलिटिकली बड़ा खतरनाक है, देसी लैब में नहीं होगा। लेकिन मुखर्जी, जस्टिस मुखर्जी ने कोशिश करी बहुत, उन्होंने, और एक अमेरिकन डीएनए एक्सपर्ट था टेरी मिल्टन, वो एग्री कर गया कि मैं इन हड्डियों का जो कही जाती है नेताजी की, इनका मैं टेस्ट करने को तैयार हूँ, बशर्ते आप मुझे इनका एक एंथ्रोपोलॉजिकल टेस्ट करके मुझे रिपोर्ट दो। एक एंथ्रोपोलॉजिकल टेस्ट से आपको मालूम चलेगा कि ये हड्डी इंसान की है कि जानवर की, ये हड्डी इंसान की, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। आदमी है कि औरत है, आराम से अपनी बहुत कॉमन सी बातें हैं जो आपको कोई भी एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सपर्ट बता देगा। बेसिकली यहाँ पे है क्या, वो आपके लोअर जॉ और स्कल के टुकड़े हैं यहाँ पे, ये जो अस्थियाँ जो जापान में नेताजी की बोली जाती हैं उनकी फोटोग्राफ्स हैं। तो वो जस्टिस मुखर्जी ने ये, जब उसको एक्सपर्ट ने कहा, टेरी मिल्टन ने, मैं करने को तैयार हूँ और पहले आप एंथ्रोपोलॉजिकल टेस्ट कराओ, तो उसने भारत सरकार से बोला कि आप ये करवाइए, क्योंकि अस्थियाँ भारत सरकार के कंट्रोल के अंदर हैं। हम लोग अगर चाहें तो कल सुबह टेस्टिंग हो जाएगा, ये जापान के पास में नहीं है, सिर्फ उस कंट्री में पड़ी हुई है, कंट्रोल हमारा है, अगर आज चाहेंगे तो कल सुबह टेस्ट हो जाएगा। तो अगर सवाल ये पूछा जाता है कि नेताजी की हड्डियों को लेकर डीएनए टेस्ट नहीं हो रहा, हमारी सरकार नहीं चाहती, तो जब मुखर्जी ने बोला करने के लिए, सब गवर्नमेंट चुप हो गई। तो हम लोग जैसे किसी के बीच में नहीं पड़ रहे। अब उसमें कमाल की बात यह है कि इतनी शर्म की बात है इस देश के लिए, छोटे छोटे केसेस के अंदर हम लोग तिल का ताड़ बनाते हैं इस देश के अंदर। आप लोगों को सुना होगा, एक भमरी देवी मर्डर केस हुआ था राजस्थान के अंदर। भमरी देवी मर्डर केस में प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वहाँ पे भमरी देवी की हड्डियाँ, मतलब बॉडी अवेलेबल नहीं थी। बिना बॉडी की आप कैसे प्रूव करेंगे कि खाली मरा है? तो वो मंत्री ने मार मोड़ के कहीं जंगल में कहीं जाकर गाड़ दिया था। सीबीआई ने जो इंक्वायरी करी है, ढूंढ ढांड के निकाला, ये उसकी फोटोग्राफ्स हैं इंक्वायरी की, और निकालने के बाद हड्डी निकाल के अमेरिका की FBI लैब में भेजा टेस्टिंग के लिए, और अमेरिकन FBI लैब ने कंफर्म किया कि ये हड्डी भमरी देवी की है। ऐसे ही केस क्रैक हुआ था। और यहाँ पे बड़ी शर्म की बात है कि नेताजी को लेकर जब भी इंक्वायरी की बात होती है, पहले आपके बंगाल के जो ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये बैठ के ये बहरे करते हैं कि साहब पैसा खर्च होगा, की हो, क्या बोलते हैं आपके, की हो गए, क्या करना, चलो चलो, तो ऐसे नहीं होता। आपके पास दुनिया जहां बके केसेस में खर्च करने के लिए पैसे की बात करते हैं कि पैसा वेस्ट हो रहा है, और तुम्हें बड़ी टेंशन है पैसे की। यार पैसे की कोई कमी नहीं है, दिल्ली में पाइए बड़ा पैसा लगा हुआ है। ये लोग जब बीमार पड़ते हैं, हाँ, लोग जब बीमार पड़ते हैं सब बाहर जाते हैं, सब अमेरिका में सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पैसे की कोई चिंता नहीं है। आप दिल्ली में हो, दिल्ली में अरबों रुपए की जमीन पर गांधी जी का उन्होंने समाधि बना रखी है। पैसे की कोई कमी देश में नहीं है, तो डिपेंड करता है कि आदमी कौन है। अब ये एक डॉक्यूमेंट जो इस गवर्नमेंट ने रिलीज किया है, इसमें इनकी डीएनए की सच्चाई लिखी हुई है। सरकार पिछले 50, 60, 70 साल से ये दावा कर रही है कि नेताजी की अस्थियां जापान में पड़ी हैं। ठीक है जी, जब इन लोगों को 2003 में कहा गया, मुखर्जी कमीशन जब काम कर रहा था कि आप डीएनए टेस्टिंग करवाओ, तो ये सरकारी रिकॉर्ड पे लिखा हुआ, ये जो डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाइड मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। स्लाइड चेंज इन द रिजल्ट में क्रिएट ह्यू एंड क्राई,
If the result is in positive, then the entire issue will be resolved. In case the result comes in negative as to the DNA result does not tally with the biological samples connected with relatives, one can imagine the reaction of the nation. इसको हिंदी में बोलेंगे कि बेटा कर लिया, अगर साबित हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव निकला तो मारे जाएंगे। तो डरते क्यों भैया, तुम करवाओ टेस्ट, किसने रोका तुम लोगों को? तो ये इनकी चोरी ही पकड़ेगी। तो प्लीज कीप इन माइंड, जब भी आपको कोई समझदार आदमी मिलेगा बोलेगा, उसको बात को दिमाग में रखो कि सरकार नहीं चाहती, हम लोग पूरे फेवर में हैं टेस्टिंग करवाने के। एक ही शर्त है कि देसी लैब में टेस्ट नहीं होगा भैया, ये देसी लोगों का मैं विश्वास नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं 25-70 साल से। कोई सरकारी लैब नहीं, कोई सरकारी एक्सपर्ट नहीं, करवाओ इसका टेस्ट अमेरिका में, और अमेरिका के अंदर भी कोई देसी आदमी नहीं होना चाहिए। सारे कांग्रेसियों के बच्चे वहां बैठे हैं अमेरिका में डिग्री लेने, अंग्रेज से करवाओ। और कितनी शर्म की बात है, हाई कोर्ट की इंक्वायरी पे, हाई कोर्ट की इंक्वायरी, ये कोई लोग, कहीं लोगों ने कहानियां, बड़े बड़े पत्रकार बैठे हुए, वो कह रहे बीजेपी ने कमीशन बनाया था मुखर्जी। अरे बीजेपी ने नहीं बनाया था भैया मेरे, वो हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ था। तो वो कमीशन जो बना, जस्टिस मुखर्जी आयोग, उसकी अध्यक्षता की है सुप्रीम कोर्ट के जज आसनसोल के हैं मनोज कुमार मुखर्जी जी। उनके पिताजी बहुत बड़े वकील थे, चंद्रचूड़ के दादाजी के साथ में भी काम करा करते थे, उनके भी कुछ उनसे लिंकेजेस हैं। बड़े बड़े मशहूर जज से, कोई उनका नाम किसी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं है। कई जज जिनका नाम लोग लेते हैं कभी कभी, कोई पॉलिटिक्स से उनका लिंक नहीं है। उसने बेकायदा बड़ी अच्छी इंक्वायरी करी, उसने कहा कि आदमी की प्लेन क्रैश में डेथ हुई, ये सारा अवेलेबल है। आप यकीन करेंगे 2006 में ये गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया बिना कारण बताया। ये एक्शन टेकन रिपोर्ट की कॉपी में हम आपको दिखा रहे हैं जो पार्लियामेंट में टेबल हुई थी। आप सोच के देखिए कि कोई छोटी मोटी इंक्वायरी हो जाए किसी नक्सल पे, आतंकवादी के ऊपर, और उस पर अगर गवर्नमेंट रिजेक्ट कर दे बिना कारण बताया, लोग तो पार्लियामेंट में हंगामा कर देंगे खड़ा। बड़ी शर्म की बात है, यहाँ कोई कुछ बोला नहीं। बंगाल के अंदर आपके जो बड़े बड़े न्यूज पेपर्स यहाँ पर हैं, वो कुछ नहीं बोले उस जमाने में। मतलब आपका जो टेलीग्राफ अखबार आता है, बड़ा एक मशहूर यहाँ का, उसने 7वें कॉलम में सिंगल कॉलम की स्टोरी डाली हुई है। अरे यार तुमने मजाक समझ रखा है, आप समझते हैं क्या सुभाष चंद्र बोस को? आपको मालूम है नेताजी का मतलब क्या है इस देश में, क्या कहानी? अभी बताते हैं आपको 2 लाइन के अंदर। लेकिन पिछले, मैं दिल्ली से आता हूँ, तो मुझे पता नहीं आप लोगों को क्या पढ़ाया गया। मैं दिल्ली में पैदा हुआ था, जहाँ पे सरकारी बाबू जहाँ रहते थे। ये बात हम लोगों को पहले दिन से मालूम है पूरे देश को। ये अहिंसा वहिंसा से कुछ नहीं हुआ देश के अंदर। ये जो कहानियां, ये जो हमारे पे चेन हो गया, आप अहिंसा से नॉर्थ इंडिया में किराएदार को निकाल के दिखा दो, अंग्रेज तो बहुत दूर की चीज है। ये प्रकार की बातें हैं। ये जो थ्योरी जो थी, अंग्रेज जो यहाँ से गए थे, उसका कारण थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है जी, ये जो कहानी लोगों ने चेपी है हमारे पे, ये लोग बड़े चालाक हैं। ये लोग, ये जितने जो सरकार में जो अफसर बैठे हैं, बड़े बड़े राय बहादुरों के बच्चे, इनके बाप दादा अंग्रेजों के पैर चाटा करते थे, समझ गए? और इनका ये प्लान था, क्योंकि बड़ी अच्छी कहानी है, उसके डबल फायदे होते हैं। जब आप बोलते हैं ना कि सब हमने दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल, उससे अंग्रेज की इमेज अच्छी हो जाती है। कितने अच्छे लोग थे साहब, चमड़ी भी सफेद थी, उनको बोला चले जाओ, वो चले गए, है नी? और जाने के बाद अपना बच्चा लंदन में पढ़ने भेजो सारे के सारे। ये लोग इतने घात किस्म के लोग थे, हमको कहते कि हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ो, और खुद का लड़का भेजा अमेरिका में, खुद का बेटा ऑस्ट्रेलिया में, खुद का बेटा अमेरिका के अंदर। ये बेवकूफ लोगों ने बनाया लोगों ने। ये पूरी कहानी इसलिए प्लांट की गई थी ताकि अंग्रेजों की इमेज अच्छी करो और अपनी इमेज अच्छी करो। और इन्होंने करते करते पूरा गांधी ब्रांड को उन्होंने मशहूर कर दिया है पूरे यूरोप अमेरिका में, जहां हिसाबों के बच्चे रहते हैं। तो ये असली रीजन का आपके देश के आजाद होने का ये था। वो हमारी प्रेजेंटेशन उसके बारे में नहीं, मैंने किताब में पूरा डेटा दे रखा है डॉक्यूमेंट्स के साथ में। आपका देश अंग्रेज कंट्रोल कर रहे थे आपकी फौज की वजह से। जलियांवाला बाग में गोली अंग्रेज ने नहीं चलाई, उसने हुक्म दिया मारने का। मारने वाले हमारे लोग थे। आप तो माशाल्लाह उनको पेंशन देते थे इंडिपेंडेंस के बाद में। ये आपके लाल बाजार के थाने में जो डंडे मारते थे हमारे लोगों को, हमारे ही लोग थे वो लोग। जो लाहौर की जेल में डंडे हमारे को टॉर्चर करते थे लोगों को, हमारे ही लोग थे वो लोग। जनरल डायर को स्वर्ण मंदिर में किसने सरोपा दिया था? किसके दादा थे? खुशवंत सिंह के पिताजी ने किसके खिलाफ गवाही दी थी कोर्ट में? भगत सिंह के खिलाफ कौन कौन लोग थे गवाही देने वाले? ये वही बड़े बड़े साहब लोग हैं जो बैठ के ये काम किया करते थे।
तो साहब आपकी आज़ादी मिलने का कारण था कि अंग्रेज कंट्रोल कर रहे थे आप ही की फौज को, आप ही के लोगों को। ये फौज उनके खिलाफ हो गई, इसलिए वहां से गए हैं। अहिंसा से नहीं कुछ होता, अहिंसा से हमारी गवर्नमेंट कौन से फॉलो करती है, हमने तो फॉलो किया। तो छोटा सा प्रोग्राम आया था पीछे, वो डिस्कवरी चैनल पे, कोई अंग्रेज उसमें है, कोई फौजी वो जंगलों में ले जाता है बड़े बड़े लोगों को, वो मोदी जी को ले गया, उसने फिर मोदी जी को भाला दिया, देखो ये भाला है। तो मोदी जी क्या बोलते हैं उसको कि साहब ये हमारे तो कस्टम में ना किसी को मारते नहीं है। तो बाबा बालाकोट में क्यों गए थे आप लोग? अगर हमारे बालाकोट में क्यों गए थे आप? गांधी जी को बोला है कि आपको कश्मीर में लड़ाई लड़नी है, गांधी की बात मानो। गांधी तो हिंसा के पुजारी थे। वो बात दूसरी है कि नोबेल पीस प्राइज किसी को मिला नहीं। पंडित जी का नाम 11 बार किया था, नहीं मिला इनको। महात्मा गांधी को नहीं मिला, यासर अराफात को मिल गया, हेनरी किसिंजर को मिल गया। और ये लोगों को अभी ख्याल है, इनको यह है कि साहब हमको भी नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा, पीस का नहीं मिलेगा आपको। अरे गांधी को नहीं दिया। अब एक प्रूफ कहानी का ऐसा है कि डॉक्टर भीम बाबा साहब अम्बेडकर कोई सुभाष चंद्र बोस के खास मित्र नहीं थे, ठीक है। बाबा साहब और बीबीसी सुभाष चंद्र बोस की कोई फेवर में नहीं थी। हम तो लोग सबूत मांगते हैं, हम आपको एक टेप सुनाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने मरने से पहले सन 56 में बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया अंग्रेजी भाषा में। पूरा का पूरा आपका 1 मिनट का बाइट है, जिसमें वो बताएंगे कि भारत आज़ाद कैसे हुआ था। उन्होंने ये बोला कि क्लीमेंट एटली, जो उस जमाने में इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था, जिसने देश को आज़ाद किया है, हमें तो यकीन नहीं हुआ कि छोड़ के कैसे चले गए। कोई छोड़ने का इरादा नहीं था उन लोगों का। ये आपको झूठ बता रहे हैं सारे कांग्रेसियों के एजेंट जो बैठे हैं, खास करके नेताजी के परिवार में लोग। 1945 के सितंबर तक अंग्रेजों का छोड़ने का कोई प्लान नहीं था देश को। ये लोग अक्टूबर में नवंबर में क्या बवाल मचा कि वो दिल्ली में लाल किले पे वो जो रेड फोर्ट ट्रायल चले, उसके बाद उनको समझ में आया। तो बाबा साहब अम्बेडकर आपको बताएंगे कि क्लेमेंट क्यों उन्होंने देश को छोड़ा। I do not know how suddenly Mr. Ackley agreed to give independence. That's a matter of secret which Mr. Ackley one day, I think, will disclose in his autobiography. How he came to do that. Nobody ever expected. This is such a sudden change of front. Nobody ever expected. It seems to me, from the analysis that I make about it, there are two things which I think led to the later party to take this decision. One is the national army that was raised by Subhash Chandra Bose. The British had been ruling this country in the firm belief that whatever may happen, in this country, and whatever the politicians may do, they will never be able, to change the loyalty of the soldier. That was the one prop on which they were carrying on their administration. Now that thing was completely dashed to pieces. When they found that even the soldier was being seduced, and to form a party or a battalion to blow off the British. Then तो ये आपका उनका बिल्कुल व्यू क्लियर था कि, और इसके सपोर्ट में बहुत से और एविडेंस अवेलेबल है, ये कोई इकलौती चीज़ नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट करने के लिए। और किसी माई के लाल में अगर हिम्मत हो तो उसको चैलेंज करके दिखा दे। अगर है ना हिम्मत तो आ जाओ बेटा मैदान में कि बाबा साहब गलत बोल रहे हैं, तो हम भी तैयार हैं डिबेट के लिए। अब है कि साहब अगर प्लेन क्रैश में नहीं मिले तो रशिया में क्या हुआ? रशिया में हम लोग जब मैं चंद्रचूड़, हम वो आपको बताएगा कि क्या कहानी हुई थी। हम लोग जब प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले थे घर में, सुभाष चंद्र उसका परिवार था, हम थे, जनरल डी बख्शी साहब और बाकी जो लोग थे, तो हमने उनको बोला कि आप रशियन गवर्नमेंट से बातचीत कीजिए, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट रशिया से बात करने में इतराती थी, खासकर जो पंडित जी की ने कभी बात नहीं की या बाकी लोगों ने। तो उन्होंने हमें बोला कि हाँ मैं पुतिन से बात करूँगा। तो ये बात है आपकी अक्टूबर 2015 की। तो उन्होंने बोला कि मैं दिसंबर 2015 में राष्ट्रपति पुतिन से मिल रहा हूँ, मैं उनसे पूछूंगा इसके बारे में। अब मोदी जी ने पुतिन जी से पूछा है नहीं पूछा, हमें उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम उसमें कुछ आंसर नहीं दे सकते, टॉप सीक्रेट होगा। लेकिन सुषमा जी ने बातचीत की थी, इसका रिकॉर्ड है क्योंकि वो बात मीडिया में आई थी। और उस जमाने में विदेश मंत्रालय के जो हमारे जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी जब ये बात हुई थी कि विदेश मंत्री हमारा देश का जो है उसने अपने रशियन काउंटर पार्ट से सुषमा जी ने बातचीत सुभाष बोस की बात की। We just asked whether there is any information in Russia which could be shared with us. Foreign Minister said he would see whether there was any information available in Russia on this particular matter.
ये विदेश मंत्रालय के लोग बिल्कुल बढ़िया शुद्ध अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन नेताजी की जबान अटकती है बोलते टाइम, तो इसकी ना थोड़ा अटक के बोल रहा था हल्का सा, तो ये इसलिए कि उनको डर लगता है बोलते हुए। अब पिछले साल 19 में ये जवाब आया, मतलब इसी साल पिछले साल में, कि रशिया ने कन्वे किया कि उनके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है जी, और सारे पेपरों ने ये स्टोरी छाप दी बिना क्रॉस चेक किए। अरे भैया हम भी तो बैठे हैं, हमें फ़ोन खड़का दो, नंबर है आप लोगों के पास में, तो आप उनसे पूछ के आप ये कर रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम ये हो रहा है, इसके मल्टीपल प्रॉब्लम्स है इस पूरे केस की। वो प्रॉब्लम ये है, हम लोग पहले दिन से ये बात बोले जा रहे हैं। पहली बात तो ये बोलना कि हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, इसका कोई मीनिंग है। उसका मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। 2009 में हम लोगों ने एक RTI एप्लीकेशन फाइल की विदेश मंत्रालय के पास में, उनको पूछा कि लाल बहादुर शास्त्री जो मरे थे ताशकंद में, उसके हमको आप डॉक्यूमेंट वगैरह दीजिए। विदेश मंत्रालय ने लिखित में जवाब दिया कि हमारे पास में कोई डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में। जब आप लोग इस तरह के झूठ बोल सकते हैं तो आप रशियन से क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप इस बात को मान सकते हैं कि विदेश मंत्रालय के पास शास्त्री जी के मरने का डॉक्यूमेंट नहीं है? अरे हमारा विदेश मंत्री वहाँ बैठा था सोलन सिंह, हमारा विदेश सेक्रेटरी वहाँ बैठा हुआ था राजकंद में, हमारा उधर एम्बेसडर था TN कौल इंदिरा गांधी जी का रिश्तेदार था, वो वहाँ बैठा हुआ था। आपका मतलब विदेश मंत्रालय में रिकॉर्ड नहीं है? उसका बेसिकली मतलब है कि वी हैव नो इन्फॉर्मेशन टू गिव टू यू, है तो तुझे क्यों दे हम लोग? आपको तो 370 हुआ था थोड़े दिन पहले आर्टिकल, उन्होंने हटाया था गवर्नमेंट ने, तो जो पार्टी से खुश नहीं थी वो जाकर गवर्नर से मिली, तो गवर्नर ने भी आंसर दिया कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके पास थी लेकिन दी नहीं उसने। ये बचकानी बातें हैं। अब बात यह है कि पहले दिन से, जब से हम लोगों ने ये डीक्लासिफिकेशन की बात करनी शुरू करी है, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये पूरा मुद्दा इंटेलिजेंस की लिमिट में आता है। अगर नेताजी रूस में थे, उसकी इंफॉर्मेशन किसी लाइब्रेरी में नहीं होगी, वो इंटेलिजेंस वालों के पास में होगी, KGB के रिकॉर्ड्स में होगी। तो आप रूस से KGB वगैरह के रिकॉर्ड मांगिए। अब प्रॉब्लम ये है कि आप पहले अपने रिकॉर्ड बाहर निकालो, इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिकॉर्ड नेताजी के बारे में, रॉ के रिकॉर्ड अगर हैं तो उनको निकालिए। जो लोग दुनिया में डंका बजाता फिरते हैं सत्य और अहिंसा का, पहले वो अपने कागज बाहर निकालें। हमारा आदमी था सुभाष बोस, उनको तो था नेशंस का। अब प्रॉब्लम ये है कि भारत सरकार ने इंटेलिजेंस के कोई रिकॉर्ड पब्लिक नहीं करे, तो तुमने अपने रिकॉर्ड तो निकाले नहीं है, तुम्हें दूसरे रिकॉर्ड क्यों देंगे? तो ये हमने मजाक में ही बना करके डाला है, हमने मीम बना करके फेसबुक में, कि पुतिन जी मोदी को बोल रहे हैं कि भैया तुम हमसे उम्मीद रखते हो KGB के रिकॉर्ड देने के लिए, तुम्हारे खुद के तो तुम रिकॉर्ड निकाल नहीं रहे हो, हैं जी? ऊपर से तुम जाकर दुनिया में डंका बजा रहे हो कि साहब हमने सत्य अहिंसा का ठेका दे रखा दुनिया में फैलाने का। आधे लोगों को खाने को रोटी पेट में नहीं और तुम चले सत्य अहिंसा की बात करने के लिए। तो पहले भैया अपने रिकॉर्ड निकालो, उसके बाद दूसरों से रिकॉर्ड मांगना। तो ये रशिया वाली थ्योरी में है कि इसमें कहानी बहुत आगे की निकलेगी, और ये कुछ इसमें खास है नहीं। मतलब जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास में है, अगर आप मुझसे पूछें क्या आप लोगों के पास में कोई ऐसा लीगली एडमिसिबल एविडेंस है कि नेताजी रूस में थे? नहीं। अगर लीगली एडमिसिबल एविडेंस होता तो ये केस खत्म हो चुका था कि वो रूस में थे मरने के बाद, तो इफेक्टिवली प्रियंका स्टोरी खत्म हो जाती है। लेकिन उसका मैं आपको एक काउंटर देता हूँ कि कोई अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, उसका कोई लीगली एडमिसिबल एविडेंस है हमारे पास या भारत सरकार के पास? नहीं। भारत सरकार जब तक दाऊद इब्राहिम खुद आके एफिडेविट नहीं देगा किसी कोर्ट में कि मेरा नाम दाऊद इब्राहिम है, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, तब तक कोई लीगली एडमिसिबल एविडेंस नहीं है। लेकिन आपको पता है, मुझे पता है, सरकार को पता है कि वहाँ छुपा हुआ है। अमरीकियों के पास में कोई लीगली एडमिसिबल एविडेंस नहीं था कि बिन लादेन अबाउटाबाद में बैठा हुआ है। ये बेकार की बातें हैं, ये चीज़ों को घुमाने वाली बातें हैं। ओपन एंड शर्ट केस है, दुनिया जहां भर के लोगों ने बोला है, रिपोर्ट से इंटेलिजेंस भी कि सुभाष बोस उसके अंदर है, लेकिन उसको लीगली कोर्ट में एस्टैब्लिश करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए है कि लेकिन एनी केस, लेकिन जो भी एविडेंस है, जो भी सुनी सुनाई बातें हमको आ रही हैं, वो यही इंडिकेट कर रही हैं कि नेताजी मरने के बाद में रूस में थे। ये जो कहानियां फ्लोट कर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी या अपने जनरल GD बख्शी साहब या अपने पूर्वी रॉय कि उनको मार दिया, वो गला घोट के मार दिया, कुछ कोई एविडेंस नाम की चीज़ नहीं है। ये सब फ्लाइट्स ऑफ फैंसीज, मतलब आप फिक्शन कहानियाँ लिख रहे हैं, उनके वहाँ होने का। इनफैक्ट मैं एक लास्ट चीज़ बोल के ख़त्म कर रहा हूँ। वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोग इतनी बेसिक प्रॉब्लम, उनको बेसिक समझ नहीं है फॉरेन अफेयर्स की। ये कहानी जो कंस्पिरेसी थ्योरी लोग देते हैं कि पंडित जी के कहने पे जोसेफ स्टालिन ने नेताजी को मार दिया, ये पूरी बेहूदी बात है। तो 3-4 कारण है। पहला कारण ये है, पहला का यही मेन कारण है कि साहब सुभाष चंद्र बोस ने रूसियों से अजाइलम मांगा था। अगर मैं खुद अपने आप आपके पास में आया हूँ तो आपको मुझे मारने की जरूरत क्या, मुझे बताइए।
तो रूसियों के लिए सुभाष बोस को जिंदा रखने में फायदा था, उनको मारने में। कोई आदमी सोने की मुर्गी जो अंडा देती है उसको मारता नहीं है, तो इतना बेवकूफ़ नहीं थे वो लोग। दूसरा ये, रूसियों के संबंध जब स्टालिन राज में था उसके हमारी गवर्नमेंट से रिश्ते अच्छे नहीं थे। गांधी जी की जब हत्या हुई है तो रूसियों ने फूल तक आपको नहीं भेजे उसके बाद 2-3 दिन तक कम से कम। पंडित जी ने अपनी बहन को भेजा भारत का पहला एम्बेसडर बना करके रूस में, स्टालिन ने उसको शक्ल तक उसको नहीं दिखाई अपनी एक बार भी। इनफैक्ट पूर्वी रॉय मैडम जो वहीं से रशिया से घूम करके आई थी, तो उन्होंने खुद लोगों को इन्फॉर्म किया कि हम लोग ने वहाँ पे स्टालिन के कुछ नोट देखे थे जिसमें उसने पंडित जी को वो लिखा पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट, ये उसके लिए वर्ड यूज़ किया, राजनीतिक वेश्या। तो प्रॉब्लम ये है कि वो पूर्वी वालों को बताओ, तालीम मैं तो आपको बता रहा हूँ यार, मैं तो मैसेंजर हूँ। ये भी एविडेंस नहीं है, दिस इज आल्सो एविडेंस नहीं है, वो बोल रही है Not कहाँ limited- पर अखबारों में छपा है। मेरा कहने का मतलब हम तो आपको बता रहे हैं कि अखबारों में क्या छपा है। तो स्टालिन के संबंध उनके साथ में अच्छे नहीं थे, पंडित जी के साथ में। तो ये पूरी थ्योरी बिल्कुल बेहुदा थ्योरी है कि साहब स्टालिन के कहने पे पंडित जी ने वो पंडित जी के कहने पे स्टालिन उनको मरवा दिया, वो बकवास है। तो एविडेंस जो दिखा रहा है, जो या जिसको आप एविडेंस की कैटेगरी में डालेंगे कि नेताजी रूस में हो सकते थे या वहां पे थे, मरने का एविडेंस वहां पे कुछ नहीं। So evidence. যখনই কোনো কথা বলা হয় সবাই এভিডেন্স চাই। What proof do you have? And that's a very legitimate thing to ask for evidence. তো এভিডেন্স যখন কারোর কাছে নেই, যেটা আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে আমাদের নানা রকম থিওরি আছে, কিন্তু সেই কোনো থিওরির জন্য কোনো বেসিক এভিডেন্স আমাদের হাতে নেই। আমরা বই পড়ছি, খবরের কাগজ পড়ছি, উনি এই বললেন এইটাই পড়ছি। তো 2006 সালে জাস্টিস মুখার্জি কমিশনের রিপোর্ট যখন জমা পড়লো এবং সরকার সেটাকে কোনো কারণ না দেখে এক কথায় খারিজ করে দিলেন, দ্যাট কেস ওয়াজ অ্যাজ গুড অ্যাজ ওভার। ইট ওয়াজ ক্লোজড, ডেড অ্যান্ড গন। তারপরে কারো কিছু করার নেই, কেননা যে কেসটাকে মানে কনজিকিউটিভ গভর্নমেন্ট ওটাকে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, দিস ওয়াজ দ্য গোল্ডেন অপরচুনিটি। কারণ কিছু করার নেই। তো সেই সময় দ্যাট ওয়াজ দ্য টাইম when Anuj had just written his first book, Back from Dead, and we were all discussing, তখন ফেসবুকও ছিল না, অর্কুট বোধহয় জাস্ট শুরু হচ্ছে, and we were on Yahoo chat groups and discussing from Indians from different corners of the world. Young তখন সেটা that is like 16-17 years old, কি করা যায়? We had no idea, but suddenly something happened that changed the entire game. 2005 সালে ইউপিএ গভর্নমেন্ট একটা নতুন আইন বানালেন, যেটা হলো রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট। মানে ওনারা যদি ফিউচার দেখতে পেতেন, যেটাকে যেভাবে ইউজ করা হয়েছে সেটা যদি কোনোদিন জানতে পারতেন, হয়তো এই আইনটা কোনোদিন ব্যবহার মানে পাসই করাতেন। আর সেই জন্য আজকে প্রচুর চেষ্টা করা হচ্ছে যে এই আইনটাকে চেপে দেওয়া, নানা রকমভাবে এটাকে উইকেন্ড করে দেওয়া। কিন্তু সেইটাকে আমরা ডিসাইড করলাম যে এই আইনটাকে আমরা ইউজ করব টু গেট ডকুমেন্টস আউট। হাজার হাজার ফাইলস রয়েছে, তালা বন্ধ করে ফেলে রাখা হয়েছে যাতে কেউ কোনোদিন দেখতে না পারে, এবং একদিন সেগুলোকে হয়তো নষ্ট করে দেওয়া হবে যাতে তার অস্তিত্ব কেউ কোনোদিন জানতে পারবে না। এবং ফলে নেতাজির পুরো ব্যাপারটাকেই চেপে দেওয়া যাবে, কোনো প্রশ্নও থাকবে না, উত্তর দেওয়ার কোনো দরকারও পড়বে না। তো এইটা নিয়ে আমরা শুরু করলাম তখন 2006 সালে। আমরা চাইলাম শাহনওয়াজ কমিটি 1955 সালে যেটা বানানো হয়েছিল তার কাগজপত্র চাইলাম, জিডি খোসলা কমিশন বানানো হয়েছিল 1970 সালে, তার কাগজপত্র চাইলাম। সব উত্তর আসতে লাগলো না, এটা দেওয়া যাবে না। তার কারণ হিসেবে দেখানো হতে লাগলো দুটো, যে ন্যাশনাল সিকিউরিটি উইল বি ইম্প্যাক্টেড, মানে এটার এই কাগজগুলো যদি রিলিজ করে দেওয়া হয় তাহলে গোটা দেশে আইন কানুন ধ্বংস হয়ে যাবে, there will be serious law and order trouble all over the country, এবং বাইরের দেশের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে। তো এমন অভ্যাস হয়ে গেছিল, রুটিন হয়ে গেছিল। আমি যখন নেতাজির স্ত্রী এমিলি সেনকেলের ওপরে যে 5-6টা ফাইল রয়েছে সেইগুলো চেয়েছিলাম, সেখানেও একই উত্তর দিন। মানে এটা কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা খুব শক্ত যে নেতাজি বিয়ে করেছিলেন কি করেননি, এবং তার স্ত্রী এমিলি সেনকেল ছিলেন কি ছিলেন না, এটা নিয়ে ন্যাশনাল সিকিউরিটির কি ইস্যু এবং বাইরের কোন দেশ দেখে যেতে পারে।
মানে রাশিয়া, জাপান, জার্মানি, মানে এরা কি নেতাজির ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি এতটাই ইন্টারেস্টেড যে যদি তারা জানতে পারে নেতাজি বিয়ে করেছিলেন তারা খুব রেগে যাবে ভারত সরকারের উপরে? মানে বোঝা মুশকিল। তো যাই হোক, কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার যে উত্তরগুলো আসছিল কোনো জুনিয়র লেভেল ক্লার্কের কাছ থেকে। এই যে ল অ্যান্ড অর্ডার, ন্যাশনাল ল অ্যান্ড অর্ডার ডিস্টার্বেন্সের কথাটা এলো, এটা এসেছিল ইউনিয়ন হোম সেক্রেটারির কাছ থেকে তার নিজের হাতে লেখা চিঠি। ফলে সেটাকে সিরিয়াসলি নিতেই হবে। মানে এটা কোনো রুমার না, এটা কোনো জাস্ট নর্মাল এক্সকিউজ না। তো তার পরবর্তীকালে যেসব হয়েছে, ফাইল ডিক্লাসিফাই হয়েছে, তাতে আমরা কিন্তু সেরকম কিছু দেখতে পাইনি। বাইরের কোনো প্রতিবেশী দেশও আমাদের উপরে রেগে যায়নি, কোনো ক্ষতি করতে চেষ্টা করেনি, এবং দেশের মধ্যে কোনো অরাজকতা দেখা যায়নি। কারণ ওই সময় আমরা তৈরি করলাম এটা করার জন্য মিশন নেতাজি বলে আমাদের একটা সংগঠন, একটা ট্রাস্ট। তো এটা 5 জনের কাজ করছিলাম তখন একসঙ্গে, এখনো এটাই রয়েছে, আরো বড় হয়েছে মিশন নেতাজি। কিন্তু এইগুলো আস্তে আস্তে আমরা ছাড়ি। উই কন্টিনিউ টু প্রেশারাইজ দ্য গভর্নমেন্ট অ্যান্ড আস্ক ফর ডকুমেন্টস। দিতে হবে। There is a law in the country, you have to give the documents. You cannot keep giving some lame excuses year after year after year. 2007 সালে we got the first success. তখন the Central Information Commission দ্বিতীয়বারের মধ্যে ফুল বেঞ্চ একটা ডিসিশন দিলেন যে যে ডকুমেন্টগুলো আমরা দিয়েছিলাম শাহনওয়াজ কমিটি এবং খোসলা কমিশনের 202টো ফাইল আমাদেরকে দিতে হবে ডকুমেন্ট। সেই অর্ডার আলোচনা হলো দেশের হাইয়েস্ট পলিটিক্যাল ডিসিশন মেকিং বডি সিসিপি, যেটা ক্যাবিনেট কমিটি অন পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স বলা হয়, সেখানে। এবং সেখানে থাকে, সেই সিসিপিতে থাকেন প্রধানমন্ত্রী, হোম মিনিস্টার, ডিফেন্স মিনিস্টার, এনাদের মধ্যে লোক। They decide that the government cannot give those 202 documents. They can give only 91. So they violated the Central Information Commission's directive and gave us only 91. I asked for INA যে অফিসিয়াল হিস্ট্রি আছে, যেটা ভারত সরকারের ডিফেন্স মিনিস্ট্রি দ্বারা লিখিত, সেটা কপিটা চাই না, তারা বললো না, দেবো না। আবার কেসটা আমরা জিতলাম ইনফরমেশন কমিশনে। তখন তারা কি করলো, তারা হাইকোর্টে একটা মামলা করে দেবে সেন্ট্রাল ইনফরমেশন কমিশনের এগেনস্টে নয়। অর্ডারটা তারা দিয়েছে, মামলাটা হলে লজিক্যালি তাদের এগেনস্টে যাওয়া উচিত। মামলাটা তারা করে দিল আমার এগেনস্টে, যে আমি কেন চেয়েছি। দ্যাট ইজ দ্য স্ট্যাটাস অফ দ্য গভর্নমেন্টস অ্যাটিটিউড টুয়ার্ডস সুভাষ বোস। তো এইটা করতে করতে থাকতে আমরা যখন চলতে থাকে, মেজর অ্যাচিভমেন্ট ওয়াজ ইন 2010 to 12। এর আগে বললাম যে 1997-98 সালে 999টা ফাইল ডিক্লাসিফাই করা হয়েছিল। সেটা ন্যাশনাল ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট করেছিলেন, মুলায়ম সিং গভর্নমেন্ট, যাদব তখন মিনিস্টার। কিন্তু সেগুলো সব আইএনএ ফাইল। সেটা কিন্তু কোনোটাই নেতাজি সংক্রান্ত নেতাজির ব্যক্তিগত সংক্রান্ত কোনো ফাইল। সেটা শুরু হলো 2007-এর পর থেকে, এখানে 2010 থেকে 12। এবং এটা আমরা শুধু আমাদের প্রেশারের জন্য এটা করতে বাধ্য হয়েছিল। 1000-এর উপর ডকুমেন্ট ফাইল। প্রথমবার একটা প্রাইভেট ইনিশিয়েটিভের জন্য এই প্রথমবার নেতাজি সংক্রান্ত 1000-এর উপরে সেন্সিটিভ ফাইল প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছে। এরপর মানে তখন আমরা দেখছি যে সব ফাইল তো এখনো রিলিজ করা হয়নি, এখনো প্রচুর ফাইল পড়ে রয়েছে। যখনই আমরা জিজ্ঞেস করতাম যে আপনাদের কাছে ক্লাসিফাইড মানে গোপনীয়, অতি গোপনীয়, ক্লাসিফাইড মানে যেগুলো ক্লাসিফিকেশন থাকে, সিক্রেট, টপ সিক্রেট, কনফিডেন্সিয়াল, এই ধরনের ক্লাসিফিকেশন থাকে। তো এইরকম ফাইল কটা আছে, আর আনক্লাসিফাইড নর্মাল ফাইল কটা আছে, কটা ন্যাশনাল আর্কাইভে পাঠানো হয়েছে, এটা কখনো সোজা উত্তর দিতে না কেউ না। প্রাইম মিনিস্টার অফিস না, মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স না, হোম মিনিস্ট্রি না, এটা সবসময় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উত্তর দিত। এবং 2-3 বছর ধরে যদি আমরা উত্তরগুলোকে মিলিয়ে দেখেছিলাম সেটা, যে এক এক সময় এক এক রকম নাম্বার দিচ্ছে। কেউ বলছে 30টা, কেউ বলছে 40টা, কেউ বলছে 50টা। তারপরে যখন 2014-15 সালে দেখা গেল এটা করতে যাচ্ছে, তখন হঠাৎ করে কোথা থেকে 300টা ফাইল চলে এলো। তো এইটা করতে করতে তখন 2013-র পর থেকে আমরা একসঙ্গে বসে পরিবারের কিছু সদস্যের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করলাম। মানে রাজ্য সরকারের সঙ্গে চেষ্টা করলাম কথা বলতে, কোনো রেসপন্স ছিল না। তো আমরা মিছিল করেছি, সেই প্রথম মিছিল করা হলো, পিটিশন করা হলো। তার উত্তরে 2015 সালে মমতা ব্যানার্জি অ্যানাউন্স করলেন
যে 64টি ফাইল রিলিজ করা হবে, ডিক্লাসিফাই করা হবে। এবং তার কিছু সময়ের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করলেন যে তিনি সুভাষচন্দ্রের উপরে যা ফাইল আছে সেগুলোকে ডিক্লাসিফাই করে দেবেন। যা ফাইল আছে, যত কিছু ফাইল আছে, কিন্তু কত ফাইল আছে সেটা কিন্তু কোনোদিন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বলে। 2015 সালের অক্টোবরে যখন অ্যানাউন্সমেন্টটা হলো যে সব ফাইল ডিক্লাসিফাই করে দেবো, সেখান থেকে শুরু করে 2017 যখন শেষ হলো তখনও কিন্তু কোনো নাম্বার দেওয়া হয়নি যে এত কটা ফাইল আছে এবং এত কটা ফাইল আমরা ডিক্লাসিফাই করব। হয়ে যাওয়ার পর যখন 304টে ফাইল ডিক্লাসিফাই হলো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের, তখন ওনারা হঠাৎ করে একদিন বললেন আরে হয়ে গেছে, আর তো কিছু নেই আমাদের কাছে। এবং সেই সুর এখনো চালিয়ে যাচ্ছেন। এখনো প্রতিদিন কোনো মন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী নিজে খালি বলে যান যে সব ফাইল ডিক্লাসিফাই করা হয়ে গেছে। প্রত্যেকটি সরকারি দপ্তরকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে যে কেউ যদি সুভাষচন্দ্র বোস সম্বন্ধে কোনো রকমের প্রশ্ন করে, কোনো ইনফরমেশন চায়, তাকে এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড রিপ্লাই দিতে হবে যে আপনার যা ইনফরমেশন দরকার এই ওয়েবসাইটে ওই 304টে ফাইলের মধ্যে আছে, সরকারের কাছে আর কোনো ইনফরমেশন নেই। অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য বিগেস্ট লাই। কেন দ্যাট ইজ দ্য বিগেস্ট লাই? বিকজ বারবার আমরা কাজ করতে গিয়ে প্রমাণ পেয়েছি যে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো, নট অনলি ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো, মানে ইন্টেলিজেন্স অর্গানাইজেশন, পুরো স্ট্রাকচারটা গোটা দেশের ডেটা, সেটা সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো, স্টেট সিআইডি, স্পেশাল স্টেট ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, যারা কাজ করে, খবর জোগাড় করা কাজ করেন, তারা বারবার এই একটা জিনিসের উপর খোঁজ করে গেছেন নন স্টপ। 1945-এর পর থেকে নন স্টপ কাজ চলে এসছে এটার উপরে। সৌলমানি সাধুটা আপনারা নাম শুনে জানেন। সৌলমানি সাধু সম্বন্ধে কোনো অফিসিয়াল ফাইল ডিক্লাসিফাই করা হয়নি। ঘটনাচক্রের সেই ফাইলটি আমাদের হাতে আসে এবং সেটা দেখিয়ে আমরা আজকে বলতে পারি যাতে গভর্নমেন্ট ইসলাম। তো এই যখন কাজ চলছে, সরকারের সঙ্গে আমাদের একটা কন্টিনিউয়াস আর্গুমেন্ট চলছে, কনফ্লিক্ট চলছে, এই যে অ্যাম্বিয়েন্স, যে পরিবেশ যার মধ্যে আমরা কাজ করছি, সেটা কিন্তু খুব একটা ফেভারেবল ছিল না। মানে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে বলতে সংকোচ হতো, আরে নেতাজি নিয়ে একটু কাজ করছি কেন, নেতাজি নিয়ে কি কাজ করছো, ওটা সময় নষ্ট করছো কেন, এতে আবার কি হবে। এবং এর শুধু মা বাবা নেই না, অনেক বড় বড় পণ্ডিত লোকেরা বলতে। और ये हम लोग जब कर रहे थे सारा काम, कायदे से तो आपके जो हिस्टोरियंस हैं, बैठ जाओ, कायदे से ये काम जो डिक्लासिफिकेशन का कि भी फाइलें खुलनी चाहिए, वो किसको करना चाहिए, किसको बोलना चाहिए? हिस्टोरियंस को बोलना चाहिए। इतिहासकार और क्या काम करते हैं, लेकिन इतिहासकार जो है वो सरकारी नौकर होता है, वैसे नौकरी करता है यूनिवर्सिटी की, सरकार के फेवर में काम करेगा तो उसको डिग्री देके फॉरेन कंट्री भेजते हैं लोग। तो हिस्टोरियन कोई किसी ने इस केस में कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, सबको बेसिकली अपनी रोटियां सेकने में मतलब था। अदरवाइज ये डिमांड हमसे नहीं आनी चाहिए, ये हिस्टोरियंस को बोलना चाहिए कि साहब सुभाष बोस की फाइलें पब्लिक करो। कभी नहीं हुआ। माहौल यह था, हालात ये थे उस जमाने में जब हम लोगों ने ये डिमांड रेज करी। इस तरह की हरकतें लोग पब्लिकली क्या करते थे? कौन आदमी जो अपने आप को इतिहासकार बोलता है इस तरह की वाहियात बात बोलेगा, वो भी मीडिया को, कि नेताजी की जो मतलब डिक्लासिफिकेशन तो बहुत दूर की बात है कि उसकी डेथ इंक्वायरी करना वेस्ट ऑफ टाइम है। और बड़ी शर्म की बात है कि सबसे ज़्यादा बंगाली इसको बोलते थे। अभी भी एक का नाम मैं बड़ा मशहूर कर रहा हूँ आजकल दुनिया भर में, ये है सुमित सरकार, इसके अंदर है, उसके बारे में लिखा हुआ है। बहुत सारे हैं, वो सुमित जी से मेरी आजकल इनके बीच में मेरा दोस्त है, वी हैव अ कॉमन फ्रेंड नाउ। द सब्जेक्ट ऑफ नेताजी, मतलब नेताजी के मरने वाला जो इशू इतना बोरिंग है कि मैं इसको मतलब रिएक्ट भी नहीं करना चाहता। ये सुमित सरकार बोलते हैं मत कर, हमें फर्क नहीं पड़ता भैया तेरे से रिएक्ट करने से। 1 घंटे से तो आप लोग सुन रहे, भैया बोरिंग तो नहीं है ना, कम से कम बोरिंग नहीं है। अगर बोरिंग है तो बुम्बा दास से और शिजी से पूछ लो कितना बोरिंग है इशू। ये सबसे मशहूर फिल्म, हिट फिल्म हुई है जमाने की, ये अपनी गुमनामी। बोरिंग नहीं है, आपको लगता होगा बोरिंग, आपके ख्याल से तो भैया जो लाल सलाम में बस उसी में इंटरेस्ट है, बाकी तो दुनिया में कोई इंटरेस्ट ही नहीं उसके। तो हमें भी फर्क पड़ता नहीं भैया, इतिहास का जो बोलते हैं बोले, हमें फर्क पड़ता नहीं भैया। हमारे लेक्चर दुनिया भर में होते हैं,
अभी अक्टूबर में 3-4 अमेरिकन यूनिवर्सिटी में लेक्चर देकर आ गया, आपकी हिस्ट्री आपको मुबारक हो। एक तक अपूर्व पिछली किताब में मेरी बनाई थी वेब सीरीज बोस डेड एंड अलाइव, और ये है ऑल्ट बालाजीज बोस डेड एंड अलाइव गार्नर्स 500,000 व्यू विद इन 10 days। इंटरेस्टिंग है ना? कोई जरूरत नहीं है इतिहासकारों की, हमारे को कोई जरूरत नहीं है, जो मर्जी बोलते हैं। अभी आपको चंद्रचूड़ ने बताया कि हमलों की वजह से बहुत सारे कागज बाहर निकले। अगर ये काम हमने महात्मा गांधी पे कर दिया होता तो पद्मश्री पे मिलना था हमारे को। बहुत बड़ा ज्ञान किया। जिस देश में कागज का टुकड़ा बाहर नहीं निकलता था, डिक्लासिफाई होता था, हमारी वजह से शायद 1,500 के आसपास फाइल बाहर निकाली। और आप कह रहे हैं कि चंद्रचूड़ धर और अनुज धर के पास में हिस्ट्री की डिग्री नहीं है। डिग्री आपको मुबारक हो भैया, हम तो फाइलें बाहर निकाल देते हैं। तो हाँ जी, कुछ है क्या? तो पॉइंट ये है कि ये सारा हम लोगों की वजह से कि कागज बाहर निकले। अच्छा, होता क्या है कि जब डॉक्यूमेंट पब्लिक किए जाते हैं तो टाइम लगता है। तो 2007 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, वजाहत हबीबुल्लाह जी उसके चेयरमैन थे उस जमाने में, उन्होंने ऑर्डर दिया हमारी उसके ऊपर कि सरकार जो है 70,000 के आसपास पन्ने, उन्होंने एडमिट किया था कि हमारे पास में 70,000 पन्ने हैं जिनको हम जो नेताजी की मौत से जुड़े हैं, और उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं कि उनको हम रिलीज करते हैं तो सारे देश में और खासकर बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कमीशन के सामने हमारी और गृह मंत्रालय के लोगों की बहस हुई और हम कमीशन ने हमारे फेवर में ऑर्डर दिया और कहा कि ये सारे कागज आपको छुपाने का मतलब नहीं है, उठा के इसको नेशनल आर्काइव में भेजो। तो उन्होंने उसमें से 70,000 में से कोई 15-20 हज़ार करने और निकाल के गवर्नमेंट ने 2010 में क्लियर कर दिए। सारे नहीं किए उन्होंने क्लियर, लेकिन ये 10-12 हज़ार पन्ने उन्होंने दिए। और जब डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं नेशनल आर्काइव में तो टाइम लगता है, सरकारी फाइलें मूव करती हैं, फिर नेशनल आर्काइव बहुत बड़ा है, वहाँ जाएगा तो उसकी कैटलॉग बनेगी, डॉक्यूमेंट को नीचे रखते हैं वो लोग बेसमेंट में, उसका रजिस्ट्री होती है, डॉक्यूमेंट को वो करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, कागज पुराना होता है, खराब ना हो जाए। तो करते 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 वो दिसंबर 2014 में पब्लिक हो गए। तो फाइल 2010 में नेशनल आर्काइव पहुँच गई, लेकिन पब्लिक को उन्होंने ओपन किया दिसंबर 2014 में। अब वहाँ तो हम दो ही पागल थे जिनको इस केस के बारे में मालूम था, तो मैं चला गया नेशनल आर्काइव में देखने की भी क्या देखो फाइलों में क्या। अब कमाल की बात ये होती है, देखो इंसान से गलती हो जाती है, इंसान तो चाहे भारत में हो चाहे अमेरिका में, गलती का पुतला है। अमेरिका में भी ऐसा हुआ कई बार कि गलती से CIA ने कुछ डॉक्यूमेंट निकाल दिए जो को निकालने नहीं चाहिए थे, गलती हो गई, निकल गई, फिर पीछा खींचो भैया इसको। तो भगवान भला करे कि गृह मंत्रालय के किसी आदमी ने गलती से 2 फोटोकॉपी फाइलों की रिलीज कर दी उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर, असली अभी तक बाहर नहीं आया। और पहले दिन मैं वहाँ के मेरे हफ्ते पहले वही फाइल कर दी, जैसे अर्जुन की आँख के सामने वो नजर आता है ना, मछली की आँख, तो वो सारे हजारे कागज में से सीधा मेरे को ये 2 फाइल नजर आई कि साहब नेताजी के परिवार के लोग जासूसी कर रहे थे। तो ये कहानी की शुरुआत हुई। मैंने चंद्रचूड़ को फोन खड़काया नेशनल आर्काइव से कि भैया देख, ये तो है वाटरगेट स्कैंडल। अब वाटरगेट क्या, जो आप में से बच्चे हैं आपको बताते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग, दुनिया का सबसे बदनाम पॉलिटिकल स्कैंडल है वाटरगेट स्कैंडल। इतना बदनाम है कि जब भी दुनिया में कोई गलत काम करते हैं, कि पॉलिटिकल स्कैंडल होता है, उससे आगे गेट वर्ड लगाया जाता है। जैसे मनमोहन सिंह जी के जमाने था ना, कोलगेट, दातन नहीं था वो, कोयले की खदानों में जो उन्होंने पैसा खाया था, कोलगेट स्कैंडल। तो ये गेट वर्ड वाटरगेट से निकल के आता। तो वाटरगेट स्कैंडल क्या चीज़ थी आप वो समझिए। वाटरगेट एक कॉम्प्लेक्स है बिल्डिंग का, वॉशिंगटन अमेरिका की राजधानी में। तो वहाँ एक कॉम्प्लेक्स, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 2-3 उसका ये धड़ा है, उसे कहते हैं वाटरगेट कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग्स। उसमें होटल हैं, ऑफिसेज हैं। तो 1973 में यहाँ पे उस जमाने की जो पॉलिटिकल, अमेरिका में 2 ही पार्टियाँ, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, जो मोटी मोटी 2 ही पार्टी राज करती हैं। तो रिपब्लिकन पार्टी पावर में थी, रिचर्ड निक्सन जो है बड़े बदनाम थे, उनको बोलते थे, ट्रिकी डिक उनका नाम रखा था। ट्रिकी डिक उनका प्रेसिडेंट था उस जमाने में, और रिपब्लिकन पार्टी का था, और डेमोक्रेटिक पार्टी अपोजिशन में थी। तो डेमोक्रेटिक पार्टी का इसमें ऑफिस था। तो रात को इसके डेमोक्रेटिक पार्टी के ऑफिस में कुछ लोग घुसे अंदर चोरी करने, मतलब आप किसी घुसोगे तो किसी चोरी करने जा रहे हैं। ये लोग पकड़े गए। जब ये पकड़े गए तो इनको कोर्ट में लेके गया। जब कोर्ट में इनकी पेशगी हुई
तो लोगों ने देखा यार ये तो बड़े जेंटलमैन टाइप के लोग लग रहे हैं, शक्ल से तो चोर नहीं लग रहा ये लोग, तो देखो शक्ल से चोर कौन लग रहा है। बड़े पूछा जी आप हो कौन, क्या करते हो? तो इसमें से 3 लोगों ने बोला कि वो गवर्नमेंट से रिटायर हो गए, ये भी थी। कहते गवर्नमेंट में नौकरी कहाँ करते थे? तो बोला जी वो CIA में नौकरी करते थे, अमेरिकन इंटेलिजेंस में। सर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग, रिटायर्ड लोग अपोजिशन पार्टी के ऑफिस में क्या चोरी करने गए थे? तो वो चोरी नहीं करने गए थे, वो बेसिकली वो ना इतनी डिब्बी लगाई जाती है वो जासूसी करने के लिए कि आपका मैंने मान लीजिए आपका मैंने रिकॉर्डिंग करनी है तो डिब्बी यहाँ लगा देते हैं, तो वो उसको ईव ड्रॉपिंग बगिंग डिवाइसेस कहते हैं उसको। तो ये लोग वहाँ पे जासूसी करने के लिए गए थे, डिब्बी लगाने के लिए। और वो बड़ी हिंदी में कहावत है कि ऊंचे दुकान फीके पकवान, नाम इनका CIA है और ये लोग पकड़े गए वहाँ जा करके, और जब पकड़े गए तो बवाल मच गया पूरे अमेरिका में। बवाल मचा तो मीडिया शुरू हुआ कि ये क्या मजाक बना के रखा आप लोगों ने। खबर निकल के आई कि राष्ट्रपति को मालूम था इस बारे में। अमेरिका का पूरा मीडिया, अमेरिका की पूरी कोर्ट राष्ट्रपति को छोड़ा। उसने कहा आपकी हिम्मत कैसे हुई राष्ट्रपति की देश के लोगों पर जासूसी करवाने की, अपोजिशन पॉलिटिक्स। तो ये पूरा वाटरगेट का स्कैंडल कुछ नहीं है, सिर्फ एक अटेम्प्ट किया गया था रिचर्ड निक्सन द्वारा अपोजिशन पार्टी पे जासूसी करने का। और उसका रिजल्ट ये निकला कि अमेरिका की 200 साल की हिस्ट्री में किसी राष्ट्रपति को इम्पीच कोई नहीं कर पाया। डोनाल्ड ट्रंप को कोई इम्पीच नहीं कर पाएगा, चिंता मत करो, बिल्कुल सिक्योर है। वो भी बच गया, वो आपका ये इससे पहले जो था वो क्लिंटन, उसने जो हरकत की आपको बता सकता नहीं, आप लोग लड़कियां बैठी हैं यहाँ पे, वो भी बच गया। लेकिन रिचर्ड निक्सन को उन्होंने नहीं छोड़ा, और रिचर्ड निक्सन को निकलना था, वो बेचारा उसने खुद ही रिजाइन करके भागो यहाँ से। और रिचर्ड निक्सन को रिजाइन करना पड़ा, और उस पर चार्ज इतना ही था कि उसने जासूसी करने की कोशिश की थी। जब मैं अक्टूबर में अमेरिका गया तो उनको मैंने बोला कि तुम बेवकूफ हो, ये जो 4 गुर्गे थे इनको एडवांस ट्रेनिंग के लिए कलकत्ता दिल्ली भेजना चाहिए था आप लोगों को। हम तुम्हें सिखाते हैं कि होती है। हमारे चाचा नेहरू के जमाने में इन्होंने जासूसी किए, पकड़े नहीं गए ये लोग, इतने चालू हैं। तो डिब्बी लगाने में क्या प्रॉब्लम है? इतना सा तुमसे काम नहीं हुआ, छोटा सा। हमारी एक्सपर्टीज है, हमको अंग्रेजी सिखा के गए डिब्बियां कैसे लगाई जाती हैं। फोन हमको टैप करना आता है, व्हाट्सएप हम लोग उठाते हैं। हमने 2 अंग्रेज प्राइम मिनिस्टर को टैप किया है, राष्ट्रपति भवन में भी टैपिंग होती है, सुना हमने। हमारी एक्सपर्टीज है, हम लोग इसके गुरु हैं चीजों के। हमारे पास भेजो, हम आपको ट्रेनिंग देंगे साहब कैसे होता है। एक चीज मुझे मालूम चली बड़ी इंटरेस्टिंग सी, मैं इसका कोई बताने का लिंक कभी था नहीं, लेकिन मैंने आपको दिखाऊंगा वीडियो। आप लोगों ने वो जेम्स बॉन्ड की थीम सुनी है? जेम्स बॉन्ड आता है, वो एक जासूस है अंग्रेज, है ना। आपको पता है वो हिंदुस्तान पे आधारित थी पहले। तो वो मॉन्टी नॉर्मन जिसने वो फिल्म जो थीम बनाई थी, वो बेसिकली एक किताब थी हाउस फॉर मिस्टर विश्वास जी का घर, उस पर कोई म्यूजिकल बन रहा था, तो उसने तो हिंदुस्तानियों के दिमाग पर वो टीम बनाई थी बेसिकली, और वो बन गई जेम्स बॉन्ड की थीम। अभी सुनाते हैं, मॉन्टी नॉर्मन ने खुद बताया। अरे जासूसी करने में हम बड़े बहुत तेज हैं। ये वो आदमी है जिसने वो बनाई थी। So tell me, where did the James Bond theme come from? It came from a musical that Julian Moore and I were writing called A House Mr. This Was, based on V.S. Naipaul's novel. Bondi's musical, based on the story of an Asian community, featured traditional Indian instruments, but it never made the set. So I went to my bottom drawer, found this number that I always liked, and played it to myself. I was born with this unlucky sneeze, and what is worse, I came into the world the wrong way round. So it had this very Asian quality. Well, I get the Indian feel, but where is James Bond in all that? I thought, what would happen if I split the notes? So I went, and immediately, the moment I did that, I realized that this was what I was looking for. And the producers agreed. So tell me, ये हमारा गुमनामी फिल्म का जो आखिरी सीन था, आपने देखा होगा, उसमें ये स्नूपिंग पे खत्म करता है कि वो दिखाया कि वो चंद्रचूड़ जो था, वो लोग
कुछ इन्होंने ये स्नूपिंग कवर किया। तो ये असली में हुआ था, हम ये असली की स्टोरी है जनवरी की 2015 में। तो हम लोगों ने जो काम किया वो जासूसी के बारे में मांग निकाला, वो हमने इंडिया टुडे को दिया और वो कवर स्टोरी बनी। और वो कवर स्टोरी बनने के बाद पूरे देश के मीडिया में सारे बड़े बड़े अखबारों के अंदर खबर फैल गई करते करते, और टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में वो खबर है कि नेहरू गवर्नमेंट स्पाइड और नेताजी फैमिली को। वो ये ना कि निक्सन पकड़ा गया 1 मिनट में, छोटा सा काम, हम लोग तक पकड़े नहीं जाते। ये तो किस्मत थी कि वो फोटो कॉपी फाइल की आ गई हमारे हाथ में, अगर वो फाइल हाथ में नहीं आती तो ये भी पकड़े नहीं जाते। बाद में अभी भी मीडिया में क्लैरिटी इस बात को लेकर नहीं आई है। बेसिकली जासूसी नेताजी के परिवार की नहीं हो रही थी, जासूसी हर एक उस इंसान की हो रही थी जिसका सुभाष बोस से दूर दूर तक कोई रिश्ता हो, चाहे वो आईएनए का आदमी हो पुराना, चाहे कोई वो पत्रकार हो, ठीक है जी। तो सिर्फ वो परिवार की जासूसी नहीं कर रहे थे, वो हर एक इंसान की कर रहे थे जिसका सुभाष बोस से लिंक हो। और जासूसी सिर्फ कलकत्ता में नहीं हो रही, पूरे देश में हो रही थी। तो ये जैसे बॉम्बे का भी स्टार्ट हो गया, सब इधर भी हो रहा है उधर भी हो रहा है। तो एक एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ और इसको दिमाग में रखिए कि वाटरगेट स्कैंडल में वो इतने बड़े बड़े आदमी छोटा सा काम नहीं कर पाया, हम लोग क्या काम करते थे आपको दिखाते हैं। ये है जी, एक पृथ्वीलाल सब्भा नाम का किसी की व्यक्ति की जासूसी हुई थी आप भी के बंगाल में 1949, गांधी जी के दिखाए रास्ते पे देश चल रहा था उस जमाने में। 1949 में इन्होंने इसको लपेटे में लिया, इसकी इंटरसेक्शन की आदमी कौन है। तो खबर निकल गई इसका कसूर क्या था, पृथ्वीलाल सब्भा का जासूसी की गई, उसका कसूर क्या था। उसका कसूर ये था कि उसने नेताजी के बड़े भाई को चिट्ठी लिखी और ये पूछा कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा है क्या। तो इंटेलिजेंस वालों ने बोला बेटा तुझे बताते हैं जिंदा है कि नहीं, तेरा उसकी उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। अब उसमें भी कमाल की बात यह है कि पृथ्वीलाल सब्भा 15 साल का बच्चा था। रिकॉर्ड में लिखा है, नहीं कह रहे, रिकॉर्ड दिखाते हैं। A thorough inquiry has been made about the writer of the letter. His name is Prithvilal Sabha, aged about 15 years. 9 का बच्चा था, इन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा लोगों ने। और भी लोगों बेटे में नहीं है, लड़कियां वो नेताजी की भतीजों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा लोगों ने। एक्सपर्ट है, सिखा के ट्रेनिंग मिली एडवांस लेवल की, हम जासूसी करना हमारी फितरत में है। महात्मा गांधी ने भी की थी, वो अलग कहानी है। It is learned from the headmaster of the government higher secondary school Darjeeling that the attendance of the boy in the school is irregular. 15 साल के बच्चे के बारे में देखो क्या लिखते हैं फाइल में। आजकल बोल रहे हैं कि देश में बड़ा वो आ गया, इंटॉलरेंस का जमाना आ गया है जी। आप दिखाते हैं there is nothing against him politically or otherwise. 15 साल का बच्चा 9वीं का उसके बारे में लिख रहे हैं और रिपोर्ट किसको भेज रहे हैं। कॉपी फॉरवर्डेड फॉर इन्फॉर्मेशन टू श्री पी.के. बसु, IPS, डिप्टी कमिश्नर पुलिस, स्पेशल ब्रांच कलकत्ता। कोई अंग्रेजा गुलाम होगा ये व्यक्ति वहां। तो ये इस हरकतों के लोग थे। तो ऐसे करते करते ना बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारे डाटा, बहुत चीज निकल के आई। और एक चीज उसमें हम आपको एक और दिखाते हैं जो बड़ी कि कितने नीच किस्म के लोग थे, इन्होंने क्या हरकतें की हैं। जो हमसे बड़े हैं उम्र में, हम दोनों से कम से कम, मैं तो दिल्ली में पैदा हुआ, आपका पता नहीं माशाल्लाह आप लोग के यहाँ क्या सिखाते थे, लेकिन हमारे यहाँ दिल्ली में हमको बड़ी क्लैरिटी थी उस जमाने में। स्कूल में थे तो सुनने में आया था कि जिसको आप वो कहते हैं ना इंडिपेंडेंस डे, वो बेसिकली था ट्रांसफर ऑफ पावर। और ट्रांसफर ऑफ पावर क्या चीज़ थी कि अंग्रेजों ने देश छोड़ा क्योंकि देश में फौज उनके खिलाफ हो गई। लेकिन जब वो यहाँ से गए हैं तो उनको भी देखना कि फ्यूचर के अंदर हमारा इंटरेस्ट मेंटेन रहे, यहाँ पे हमारे ही भाई बंधु बैठ जाए पावर के अंदर। तो जो लोग इनको ग्रीटिंग कार्ड भेजते थे क्रिसमस में, उनको ये पावर देके चले गए कि भैया तुम बैठो यहाँ पे, कुछ कल को प्रॉब्लम होगी तो देख लेंगे आपस में। तो वो लोग जो पावर में बैठे, इन्होंने आपस में सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग की थी। पहले के जमाने में ये कहा जाता था कि सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग हुई थी, प्रोटोकॉल थे, और उसमें से एक प्रोटोकॉल था कि सुभाष बोस अगर वापस आता तो उसको पकड़ के आपके हवाले कर देंगे। अब वो तो मुझे पता नहीं कि प्रोटोकॉल सुभाष बोस का था कि नहीं था, लेकिन एक बात 2015 में साबित हो गई है कि सीक्रेट प्रोटोकॉल थे। आपने क्यों नहीं बताया पार्लियामेंट के अंदर हमको? पंडित जी तो नहीं कभी बोला स्टेटमेंट दी, किसी ने क्यों नहीं बताया हमको कि आपकी अंग्रेजों की अंडरस्टैंडिंग थी भैया, प्रोटोकॉल थे सीक्रेट। जो सीक्रेट प्रोटोकॉल 15 हमको चला है कि ज़्यादा टाइम अंग्रेजों ने यहाँ पे एक ऑफिस खोला जिसका नाम था SLO, ऊपर लिखा हुआ है, सिक्योरिटी लिएजन ऑफिसर। और ये बेसिकली क्या था कि आपने यहाँ बिठाया माई बाप इंटेलिजेंस का,
और हमारी इंटेलिजेंस की जो हेड थे वो उसको जाके रिपोर्ट करते थे कि साहब ये लो हमारी फाइल है। तो उसी के दौरान, और ये जो सुभाष चंद्र बोस पे जो जासूसी होती थी उसकी भी इंफॉर्मेशन ये लोग इकट्ठी करके उनको अंग्रेजों को आज़ादी के बाद में दिया करते थे। ये इन कागजों का मतलब है मोटा मोटा। तो ये दिस अरेंजमेंट वाज ऑन टिल 1968 1968 অবধি এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা চলেছিল যে আমাদের যা কিছু ইন্টেলিজেন্স গ্যাদারিং হবে সেটা যাবে এমআই ফাইলে এবং সেটা অ্যাক্সেস ওরাও অ্যাক্সেস করবে আমাদের যা ইন্টেলিজেন্স জেনারেট করা হচ্ছে। তো 1968 সাল অবধি কেন করা হলো? 1968 সালে শেষ করে দেওয়া হলো ওই অ্যারেঞ্জমেন্টটা। তার কারণ এটা নয় যে আমাদের হঠাৎ করে দেশাত্মবোধ জেগে উঠলো এবং আমরা খুব সেলফ রিলায়েন্ট হয়ে গেলাম এবং আমরা কারোর সঙ্গে কোনো এই ধরনের রিপোর্টিং অ্যারেঞ্জমেন্ট রাখবো না বলে আমাদের মনে হলো, এটা নয়। কারণটা তা না, কারণটা হলো 68 সালে এটা শেষ করে দেওয়া হলো কারণ ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারত সরকারকে বললো যে এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা চালানোর জন্য, ফান্ডিং করার জন্য আমাদের কাছে পয়সা নেই, ফলে আমরা একটা লোককে ওখানে মাইনে দিয়ে বসে রাখতে পারবো না, আমরা লোকে ফিরিয়ে আনছি, তোমাদের যা করা তোমরা করে নাও। ট্রান্সফার অফ পাওয়ার, কোনো সিক্রেট ক্লজ আছে বা কোনো সিক্রেট ডকুমেন্ট আছে এমন নয় যে পুরোনো দিনে এগুলোকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। 2 বছর 3 বছর আগে 2015 মেবি we asked the Prime Minister's office, the Home Ministry, যে ট্রান্সফার অফ পাওয়ার কোনো সাইন্ড কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট আছে কিনা, কোনো ডকুমেন্ট আছে কিনা, তার কোনো অ্যাকশন, কোনো সাবসেট আছে কিনা, কোনো এমন কোনো ক্লজ আছে যে কোনো একটা ওয়ার্কিং অ্যারেঞ্জমেন্ট হবে যতদিন না ইন্ডিয়া রিপাবলিক হচ্ছে। উত্তর এলো আপনারা কি প্রশ্ন করছেন আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি মজা করছি না, and that was just the answer. जैसे ये जो डॉक्यूमेंट है ये लंदन से निकल के आया, ये भारत का नहीं है, हमारे याद नहीं लिखा लेकिन लंदन से निकल के आया। ये है एस बालाकृष्णन शेट्टी जो आईबी में बड़े साहब थे आज़ादी के बाद के, और इन्होंने सुभाष बोस जासूसियां बाद में भी की मैटर है। तो ये चिट्ठी लिख रहे हैं अपने साहब को जो यहाँ बैठा है SLO मिस्टर बॉन्ड, और मिस्टर बॉन्ड चिट्ठी को फॉरवर्ड किया लंदन में। उसमें ये लिखा हुआ है कि हमको 1947 को मतलब आज़ादी मिलने के 1 महीने बाद ये लेटर AC नाम्बियार ने भेजा नेताजी के घर में। नाम्बियार नेताजी के साथ में थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी में वहाँ पर उनके साथ थे। तो ये द लेटर वॉज सीन ड्यूरिंग सीक्रेट सेंसरशिप एंड वॉज पास्ड ऑन कि आज़ादी हो गई है, देश आज़ाद हो गया है, हम लोग गांधी जी के रास्ते पर चल रहे हैं, तो अब सेंसरशिप लगी हुई है सुभाष बोस के घर में। वहाँ इन्होंने लपेट लिया और ये लेटर इन्होंने फॉरवर्ड किया अंग्रेजों को, और यहाँ लिखते हैं कि वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर योर कमेंट्स ऑन द लेटर। ऐसे लिखता है जैसे चाचा जी की शादी की बात कर रहा हूँ। आपको शर्म नहीं आती हरकत करते हो आप लोग को इंडिपेंडेंस के बाद में? अपने आदमी के, अपने जिस आदमी की वजह से तुम लोग आज़ाद हुए हो उसके घर में जासूसी कर रहे हो तुम लोग बेशर्मो, और वो जासूसियां की रिपोर्ट लेके अपने मालिकों को दे रहे हो इंग्लैंड में। ये बेशर्म लोगों को पूरे मीडिया में ये खबर छपी है, सारे मेन स्ट्रीम अखबारों में। आपके यहाँ 3-4 बंगाली अखबारों में नहीं छपा होगा, कांग्रेस पार्टी के जो चमचे हैं यहाँ पे पूरे मीडिया में खबर छपी है कि आईटी शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन प्रोसेस की वजह माई फाइल। फेसबुक पोस्ट नहीं है जो शेयर की थी, उन्होंने जासूसी की थी लोगों ने पूरे मीडिया में, और वही निकल के आया। जब हमने इनसे पूछा तो ये आंसर देने को तैयार नहीं है। और यही कि उसका देखिए जासूसी, जैसा आपको मैंने बोला कि सुभाष बोस के परिवार की नहीं हो रही थी, इंटेलिजेंस वालों को कोई इंटरेस्ट सुभाष बोस के परिवार में नहीं है। वो सारी जगह जासूसियां कर रहे थे वो, क्योंकि उनको पता कि असली आदमी जिंदा है, और यही पूरे मीडिया ने इसका यही मतलब निकाला है। पूरे मीडिया में जो है, क्योंकि सबको पता कि कांग्रेस वाज स्केयर्ड ऑफ बोसेस रिटर्न, वो सभी को जासूसी कर रहे थे, क्योंकि अगर वो जिंदा है तो फैमिली से कांटेक्ट करेंगे, जिंदा है INA के लोगों से कांटेक्ट करेंगे, जिंदा है तो उससे कांटेक्ट करेंगे, तो सबकी टैपिंग करवाओ। और ये नहीं, तो इस तरह से। और उसके बाद यही जो रीजन था कि दीदी ने जब डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाई किए यहाँ पे अपने, तो उन्होंने ये खुल्लम खुल्ला स्टेटमेंट दी थी कि नेताजी माइट हैव बीन अलाइव आफ्टर फाइंडिंग बॉडी फाइल। उसका मतलब ये था कि साहब ये जासूसी अपने आप में ही साबित करती है कि वो जिंदा थे। नहीं तो आप क्यों 1970-71 तक, कुछ लोग का बोलना कि 84 तक आप क्यों जासूसी करेंगे सुभाष बोस के परिवार के बाकी लोग की? और यही उस जमाने में बीजेपी का भी ये मानना था कि साहब जासूसी होने का मतलब ये था कि सुभाष बोस जिंदा है। नेताजी का परिवार जो आज कोई और तूती बजा रहा है, अगर आप उस जमाने के अखबार देखेंगे 2015 के, उन्होंने भी यही बात बोली कि जासूसी होने का मतलब ये था कि नेताजी जिंदा थे।
हाँ